Great. And let's talk about other folks. We have Khushi who wants to be in banking and logistics. Okay, that's amazing. What about others? Yeah, so a lot of finance and a lot of background which goes out there. Okay, that's amazing. Great. I think we are good here. So I'll pass on the dice to somebody from the college, I think. Yes, sir. Venkatesh. Yes, sir. The Venkatesh is here. Yes, sir. Great. So I think Uh, Venkatesh, you can take it from here and then we can yeah, take it. sure, sir. I would first like to present the welcome note for the team and the professors present here. So, hello and very good morning to one and all. On this Sunday morning, I am Venkatesh Dusane, Student Placement Coordinator, and I'll be your host for today's workshop. I would like to extend my gratitude towards Principal Ma'am of Sydenham College and our placement cell professor in charge, Dr. Jharna Kalra Ma'am, Dr. Anil Chaugule sir, and Dr. Hassan Ali sir, who made this webinar possible. I would like to welcome team from 10,000 speaker community, Miss Rashi, Mr. Abhishek Gulia sir, founder of 10,000 speaker community, and our guest speaker, Bhomick Sen. I would like to introduce Mr. Bhomick Sen to you all. His series and workshop would this series and workshop would be led by him. He is a two-time TEDx speaker, author, and public speaking coach. He has an experience of 15 years in the field and has taken 750 plus interviews for various positions. And I hope you all take a very useful and lifelong learning from this webinar. And I would now like to hand over the stage to our speaker, Bhomick sir. Welcome, Bhomick sir. Thank you, Venkatesh. Thank you so much for this introduction, and a very warm welcome to each one of you on this Sunday morning. What a morning this has been, right? And I'm really sorry, to start the pitch. I'll be really apologetic about the glitch which happened. Technical glitches happens every now and then, but then we have a habit of bouncing back, right? So there were some challenges which we faced at the very last moment, but then even then we are here with you guys, right? And thank you so much for waking up early, I would say, on a Sunday morning, and making an effort to join this session. Thank you so much, each one of you. So before I start, guys, if I can just request you to turn on your cameras. I know it's a Sunday morning. अगर हम लोग नहाए भी नहीं हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं यार. Just turn it on. It gives me a sense. It gives me energy, right? So my energy is driven by you guys, by the audience, right? When I see you guys, there's a different energy level on which I operate, right? And how many of you want me to be at my best for next 90 minutes? Let me know. How many of you want me to be at my best during next 90 minutes, so that I can give you the value? Yeah, please put in the comments. Please put in the comments. Say I, or raise your hands, whatever is good with you. Okay, Shaina says I. Pranjal, Aparna, Dhanushri, Janavi, Bhagyashri. Very good, very good. Gruti as well. All right, thank you so much for your response. And absolutely, even I want to be at my 100%, not even 100%, 200% for next 90 minutes. And for that, I just want one thing: your attention, your participation, and if possible, if you can turn your cameras on, that will be really nice, guys, right? Because the energy level is at totally different level. Okay, so let's get started here. So I'll be sharing my screen. Let me know once it is visible. Yeah. Quick question, Bhomick. Before we start the screen sharing and we take this across. Why don't we have one selfie with everybody? Because that way it would be a very nice start of the whole thing. What do you think? Absolutely, that's a Yeah. great idea. Yeah. Okay. So awesome. So I think let's do this. Guys, please, can you guys hear me? I think that's amazing. So ek baar ke liye, let's just for 10 seconds, just switch on your camera so that Just we 10 can seconds. see you across on the screen.
and we can then take the session across. So I think Abhishek is available. I can see Venkatesh. That's amazing. What about others? Guys, मतलब can मुझे we पता है बहुत just सारे लोग बहुत सारे लोग ऐसे बेड में लेटे हुए हैं लाइक यार ये क्या बोल रहे हैं क्या होने वाला है खुशी I can see खुशी that's amazing खुशी what about others Prerna thank Komal you, okay Komal. that's amazing Thank you, Bhagyashri. Thank you, great Arpita. and also थोड़ा सा मैं I would like to tell कि guys please take a notebook and try to make notes of the session because a lot of Absolutely. interesting things will be happening in this session and it would be super helpful for you not just right now but also when you are taking it ahead. Okay, so Sharanya, you're here with us. Yes, sir. Great. I think we have a lot of faces on camera. You can take a quick screenshot so that that can be taken across. We can put it across officially on the Instagram as well. Can we just have a victory symbol? Yeah, Yeah. can we 1, 2, have this 3. victory works? Woo. Okay. Sir, just give me a second, sir. I'm just. Sure. Victory sign ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर तो. Okay, I'll take a screenshot. No issues. Just we can do a victory to start with. Okay. All right. So I think that is done. आप लोग अपने cozy comfort areas में बैठिए. Please take a notebook. आपको अगर cameras on रखने हैं, you can keep the cameras on or you can keep the cameras off to start with. And आपको जो भी questions हैं, please. This is a open session, so we are very open to questions. जो आपके questions हैं, write them down in the chat box और in the end of the session आप पूछिए. But जितना interaction करेंगे ना, that way things will be amazing. Also, language I would like to understand. Should we keep it only in English or only in Hindi? Or we can keep it English and Hindi both. Please put in the comments and tell us. What would you like English to? or Hindi or both? Or both? Would you like to do it the whole session in English or Hindi or a mix of both would work? Okay. English. So I think a lot of people are saying mix of both would work. I think that's amazing. Okay. Mix of both. I think All that's right. amazing. So let's start this amazing session across. So Bhomick, are you ready for today's super energetic session? Absolutely. Absolutely. All Every right. time. So are you guys ready? Please write ready in the comment box so that I can know that there's a lot of energy in the room and we can take this thing across. I'll tell you a whole scenario. हम इसमें कैसे कैसे करने वाले. We'll be starting with giving you a couple of introductions. क्या क्या चीजें हम cover करने वाले हैं इस session में. We'll be giving our introductions. We'll be taking up 3 to 5 topics जो आपके public speaking और interviews के around में है. We'll be talking about them in detail. If you have questions, put it down in the chat box. We'll pick up the questions from there. And in the end, we have another question session. जिसमें आपके 10-15 मिनट के question sessions हैं. All the questions you have around placements, how do people think, what do HRs think, this and that and everything you can ask, and we'll try to answer that. Okay, so I think the readies are here. So a lot of people have said ready, and I think Bhomick Super Energy is here with us in this session. Shall we start? Why not? Let's kick it off, guys. All I right. think that's amazing. Sure. Thank you, Abhishek, for setting the context up for this wonderful session on this Sunday morning. What a beautiful morning it is. So, guys, we'll start with the introduction. As you can see on the screen, Mr. Abhishek Gulia, he's a public speaking coach. He's the founder of 10,000 Speakers. He has been speaking a lot on various topics, including public speaking, and he has been invited in hundreds plus schools, colleges, corporate events, and whatnot. He is member of esteemed associations like National Speaker Association, USA, World. We have a tie-up with World Speech Day as well. He's a member of PSOI, that's Public Speakers of India, and a part of Speakers Hub International. So it gives us immense pleasure to welcome Mr. Abhishek. Mr. Abhishek. Thank you, Bhomick. It is super amazing to talk to young minds. I'm a follower of Dr. APJ Abdul Kalam, and he says the young is the future. And that drives me to do these workshops with these young folks. So I think I'm super excited for the session. Thank you, Abhishek. And now this slide gives me a chance to blow my own trumpet, right? So my name is Bhomick. I'm a public speaking trainer. So I have a corporate experience of 15 plus years. I'm working as a senior product manager in one of the MNCs. Apart from that, for last 10 years, I've been
coaching the youth of India on public speaking and mindset coaching, right? I'm the best-selling author of Amazon #1 best-selling author of the book Hidden Secrets of a Super Learner. You can check it out on Amazon. And I'm a 2 times TEDx speaker as well. So TEDx was humble enough to give me that opportunity. So today I'll be, whatever I'll be talking about, it is all experience based. Everything is experience based. There's nothing bookish, right? And I'll be giving you customized things which will be helping you. So as Abhishek told that I have taken more than 700 interviews, and I've given more than 100 interviews myself in the span of 15 years. I have been on both the sides of the table, right? I know what it is to be an interviewer and what it is to be an interviewee, right? So that is where I'll be sharing the perspectives. So before we go ahead, let me introduce you to this guy, Teddy, right? So this guy, this cute Teddy, I got this guy 10 years back, and for last I think 7 years he has been attending all my sessions, right? But then what I see is that इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया। ये ना ही एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बना है, ना ही एक सुपर लर्नर बना है, ना ही इसका माइंडसेट ठीक हुआ है। बड़ी दिक्कत है यार इसके साथ। So can you guys tell me why is it so that he has been attending all my sessions but then कुछ सुधार नहीं आया, जैसा का जैसा था, जैसा इसको मैं लाया था शोरूम से, ये आज भी वैसा का वैसा है। तो कैन यू जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स दैट व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया? क्यों भाई, क्यों नहीं आया? कैन यू जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स? Right, non-living thing. Okay, Siddhi says non-living, Abhishek says non-living, and feeling less. Okay, feeling less या feeling less? Feeling कम है या feeling है ही नहीं? Okay, all right. So because Teddy doesn't want to. हाँ, सही बात है, ये चाहता ही नहीं है यार. Okay, or all right. So let me help you this. Since he's a non-living, he can't implement, not adapted what you said. Very nice guys. So जैसा कि आपने बोला कि ये non-living है, ये बात नहीं कर सकता, ये सुन नहीं सकता, ये चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, ये मेरे सेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, राइट? बट आप लोग तो कर सकते हैं, आप लोग तो कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर दैट आप में से कोई भी इस टेडी की तरह नहीं बनना चाहेगा, राइट? सो इफ यू डोंट वांट टू बी लाइक दिस टेडी, please participate, right? So I'll help you with the flow of this particular this particular webinar, which will be very interesting. Now let's understand why public speaking chahiye kyun bhai? Why there is so much buzz around this word public speaking? ऐसी भी क्या चीज है public speaking? What in time and space is this public speaking? Now guys, let me ask you a question. How many times a month do you have to present in public? Just write in the chat box. एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार. Please write in the chat box. How many times do you have to present in a month? कितनी बारी present करना पड़ता है आपको? Write in the chat box, guys. All the time. खुशी says all the time. अच्छा, मतलब आप presentations ही देते रहते हैं. Very good. और how many times do you have to present? अच्छा, अर्पिता says none. Okay, एक बार भी मौका नहीं मिलता. सर खुशी को तो बहुत मौके मिलते हैं, मुझे एक भी मौका नहीं मिलता. Very nice. Guys, I'm looking out for your response. Okay, this is none. Everything when you are around public. Okay, sometimes Abhishek says sometimes, Prerna says everything, all time, every time. Okay, very nice. I think okay, once or twice. So I'm listening to once or twice as well. So I think Abhishek, this is a very good crowd, right? They are already enlightened about one thing which I want to tell them here, that guys, you are presenting all the time. You actually are presenting all the time. As a matter of fact, whenever you speak, चाहे public है चाहे नहीं है, चाहे ध्यान से सुनना, चाहे public है चाहे नहीं है, you are doing public speaking. Even if it is a one-to-one, you are talking to your friend, you're talking to your parents, you're talking to your sibling, you're talking to your relatives, it is public speaking. Even when you are talking with yourself, it is public speaking. So you are presenting all the time, and that is why folks, this public speaking is that important. Let's do a poll. Let's do a quick poll, guys, here, right? How many of you think that interview का एक बहुत ही important part है public speaking? How many of you think that giving an interview is part of public speaking? How many of you think? Just write in the chat box. Yes or no, yes or no. Yes, it is, right? Very nice.
Very, very responsive audience. I'm impressed. Very nice, very nice. All right. So the next question is, two candidates. Imagine two candidates, right? Bhomick and Abhishek. Okay, two candidates with same technical skills, but one is having an edge on public speaking and presentation skills. कौन जीतेगा? कौन इंटरव्यू में क्लियर करेगा? अभिषेक के बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, भौमिक के एवरेज स्किल्स है. Who will win? Who will fare well in the interview, guys? Let me know. Let me know. Abhishek. Wow, Abhishek, you are the popular winner here, right? So very nice, right? Because at the end of the day, technical expertise can be gained, right? But then public speaking is one thing, that is where you connect with people. Just think of it, guys, कि आप जब जॉब देने जाते हैं, आप किसके साथ, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आप किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? पीपल के साथ, लोगों के साथ. आप जब जॉब में जाते हैं, आप किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? पीपल के साथ, पब्लिक के साथ. आप लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? पब्लिक के साथ. अगर आपको पब्लिक के साथ डील करना आ गया, यू विल बी अ विनर, श्योर शॉट गाइस, श्योर शॉट. there is absolutely no second thought in this. And how many of you think that becoming a confident speaker increase your chances of selection? If you become a confident speaker, अगर आप एक confidence के साथ इस तरह से खड़े होके अपने लिए बोल सकते हो, तो that will actually increase your chances of selection. Just write yes if you believe this. Just write yes, guys. Again, a lot of yeses coming in. Very nice. I'm getting super energy from this audience. All right, so यहाँ पे मैंने बात करी सुपर कॉन्फिडेंट स्पीकर की, राइट? एंड दैट इज वेयर वी आर ब्रिंगिंग टू यू दिस प्रोग्राम व्हिच इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग फॉर प्लेसमेंट्स, राइट? पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक तो है हमारे पास, स्पीकिंग कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं. हाउ टू बिकम अ बेटर स्पीकर, वी विल टेल यू. एंड ये सारा का सारा आपकी एप्लीकेशन या अप्लाई कहाँ होगा? प्लेसमेंट्स में. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट अभिषेक ऑन दिस नोट, एंड ही विल टेल यू दैट हाउ you can become a confident speaker. What does it take to become a confident speaker? Abhishek, over to you. Awesome. Thank you, Bhomick, for such a lovely introduction. So I think let's talk about it. So right now everybody is here, and still people are joining, so that's a different thing. Um, okay, awesome. So I would love to know from your side, first of all, the audience side. What do you think? What is confidence? Please put in the chat box. What do you think? What is confidence? The word "suna" to hai na. We have all heard this from childhood. But what does it mean? Then we'll be talking about why it is important, how to build it, and how this can be helpful in your interviews. But I would love to know, what do you think? What do you think? What is confidence? Okay, so Shaina says confidence is the key to success. Okay, great. Performing a task at your best is confidence. Okay. To have the trust in yourself that you can do it. Okay, that is nice, Prerna. That is really nice. So that is somewhat near to what is confidence. If there is no fear inside, okay, that is still okay, but not exactly. Believing in yourself is confidence. Yes, that is great, Kruti. That is amazing. To be able to express your opinions. To be able to express your opinions is communication, but to be able to express your opinions fearlessly or openly is confidence. I think that's great. Okay, okay. I think now people are talking about it. Feeling a self assurance arising to appreciation of one's own abilities to take it across. Okay, I think that's me. ठीक है. So I think we have the audience here जिसको थोड़ा बहुत confidence के बारे में चीजें पता है, and I think that is a good part. Okay, but I'll tell you a little more thing about this whole game of confidence. Confidence, whenever we talk about in life, you achieve things with confidence. You know, you achieve your degree with confidence to get marks. You achieve your life partner, your girlfriend, your job, and a lot of other things that are accomplished with confidence. So confidence becomes a super important thing in the whole journey. So in this slide, we'll be talking about what is confidence, how to build it, and what you can do to sustain it over time. Yeah.
Awesome. So I think first of all, when we talk about confidence, there is one basic thing that comes into the picture, and that is self-awareness. Do you what do you guys understand with the word self-awareness? What do you guys think? What is it? What does the word self-awareness mean? What do you think? Please put in the comment box. I would love to see that. Okay, I can see some comments coming in. But the question is, what is self-awareness? What do you think? We should be able to have the knowledge of what we are speaking. Not exactly. वो तो होना ही चाहिए, बट सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? एंड जितना गाइस, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे ना, जितना आप लिखोगे ना इन द कमेंट बॉक्स, मे बी मैं हाईलाइट कर पा रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप लिखोगे ना तो उतना आपको और डिटेल में समझ में आएगा. एंड आई थिंक दैट इज द गोल. the the thing is who we are. Okay, capability of knowing who you are. Okay, that self improvement is self awareness. Okay, okay, when you are aware of your thoughts and emotions, fair enough, fair enough, when you're able to focus on yourself, Pranjal says, when you're able to focus on yourself and your thoughts, actions and emotions, वो तो सही बात है, but not exactly. Okay, SWOT analysis. Okay, that is a part of it, but I think that's a very good answer. Great. So let's talk a little more about it. Okay. So I think we all have our names to start with. Everybody has a name, right? Khushi, Ayush, Riddhi, Ronak. Everybody is here and everybody has a name. Who gave your name? Matlab, who kept your name? Somebody from your family, somebody from your relatives, yeah, somebody, right? Parents, essentially. So that is great that they have chosen a name. But do you know that there are a lot of Sakshis, lot of Priyams, lot of Shubhams, lot of Abhisheks. Abhisheks to bahut zyada hai. So lot of same name people are there. So there's no differentiation. And self-awareness starts with very simple thought, which is differentiation. That I am unique, I am different, and I am who I am. Okay. So let's do a quick activity today here where we'll take up an adjective in front of your name. So you will be taking an adjective in front of your name which starts with the same letter as your name. तो अगर आपका नाम दीपक है तो आप हो सकते हैं डैशिंग दीपक. अगर आपका नाम कुसुम है तो आप हो सकते हैं काइंड कुसुम. अगर आपका नाम शुभम है सो यू कैन बी शाइनिंग शुभम, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो जो आपका फर्स्ट लेटर है उससे एक एडजेक्टिव पिक करते हैं और अपने नाम के सामने लगा के आप कमेंट्स में डालिए. अगर आपका नाम दीपक है यू कैन बी डैशिंग दीपक. आपका नाम प्रेरणा है तो यू कैन बी प्रिटी प्रेरणा. और अगर आपका नाम साक्षी है यू कैन बी सुपर साक्षी. ओके, साक्षी साक्षी ऑल्सो वर्क्स. तो गाइस पुट इन द कमेंट बॉक्स, डालो, लेट्स सी. क्योंकि नाम तो घर वालों ने रख दिया है लेकिन कुछ डिफाइन तो करें हम अपने आप को. ठीक है. So please put it down in the comment box. I would love to see. So we have got Sashi Shakshi, tongue twister है वैसे ये थोड़ा सा. Pretty Prerna, that's amazing. Brave Bhomick, Shining Shubham, Sweet Sneha. Okay, that's amazing, guys. Pour it down, pour it down. Yes, Radiant Rahil. Then we have Ambitious Asmi. We have Kind-hearted Komal. Komal कैसे pick करो? Okay, kind-hearted Komal. Great. Then we have talented Tejaswini, we have peaceful Pranjal, we have keen Khushi, we have amazing Ayush, loyal Saina, blissful Bhagyashri, aggressive Arpita, wise Venkatesh, marvelous Mridul, radiant Riddhi. All right, that's amazing. Did you see that? So we joined as people who were like with regular names. Everybody has, but now do you realize that now you have you have a surname, or maybe you can say you have an adjective that you can always put in front of your name, and that way whenever you're introducing yourself you can put it across and people will feel the difference, and you will also feel the difference, because what you have done now is that you have told the universe that you are not the regular Sakshi, you're not the regular Aparna, you're not the regular Mridul who is out there. You are somebody special and you have adjective across. So guys, tell me, how are you feeling?
Please put in the comments. So ये adjectives use करने हैं, you have to use these adjectives elsewhere as well. लेकिन how are you feeling after getting your adjectives with you? Yeah. And देखो interesting चीज क्या है, regular people, we joined as regular people, but just this quick change in the whole perspective makes it different, and it defines that you are unique. Because job है, चीजें हैं, life है, ये सब चीजें आती है, but अगर आप अपने आप को डिफाइन करना सीख जाओगे, समझ जाओगे, तब आपकी लाइफ असल में स्टार्ट होती है. दैट इज व्हेन लाइफ स्टार्ट्स. उससे पहले एवरीबडी इज फ्लोइंग, एवरीबडी इज डूइंग द सेम बीबीए, एवरीबडी इज डूइंग द सेम जॉब्स, और ऐसे ऐसे चलता रहता है. ओके, सो आई थिंक दैट इज अमेजिंग. सो सेल्फ अवेयरनेस के लिए दैट इज वन बिल्डिंग ब्लॉक. So this is one activity that we did, but there are a lot of other activities. You can explore it on the internet. One thing I would like to say is you can do a free writing exercise. You can just pen it down if you're having notes. It is called free writing exercise, where you take up a pen and a paper and write for 20 minutes. What do you have to write? Anything and everything coming in your mind should go on the paper. And just write it down. If you want to read it, maybe you can read it, or just throw it away. Just write it and throw it away. Write it, throw it away. Do it for 10 days. Your head will become clear. Because a lot of times we are all thinking about things which will happen, which have happened, which is going, which is uh, contemplating, and a lot of things are happening. तो बहुत सारे है ना ऐसे दिमाग में ऐसे भर के चलते हैं, कोई फायदा नहीं है. पहले अपने थॉट्स को जानना है, तो फिर कचरा निकालना पड़ेगा. तो पिक अप अ पेपर. मे बी अगर आप मॉर्निंग पर्सन है तो यू कैन डू इट इन द मॉर्निंग, और इफ यू आर इवनिंग पर्सन, डू इट इन द इवनिंग और एनी टाइम ऑफ द डे, एंड डू इट ओनली फॉर 7 days and see the kind of difference. करना क्या है? Take up a pen, paper, and start writing. You don't have to stop. You don't have to think what you have to write. You just write everything, whatever is coming in your mind, and just put it down. And that way things would be amazing. So it is called free writing exercise. And once you start doing that, you will be able to see your actual emotions, actual people you appreciate, जिसने अच्छा किया, जिसने बुरा किया, जो भी चीजें चल रही है, जो आपको बहुत सारी चीजें नहीं भी पता होंगी, that also you will be able to get. And that way it's an amazing exercise. Okay, so who will do it? Will you try? Please put in the comments. I would love to know. Would you try this exercise, free writing exercise? All right. So I can see a lot of yes in the comment box. I think that's amazing. So first aspect of building a very unshakable confidence is uh, self-awareness, right? Okay, awesome. Now I'll talk about the second aspect. So there are three aspects of which are basic building blocks. Second aspect is subject knowledge. Now it is very simple. It is not rocket science to learn anything in today's world, right? If you want to get into finance, if you want to get into marketing, if you want to get into finance, insurance, and a lot of things like that, anything and everything is available online. What we do as a student is that we have this thing like outer world is expanded. Anybody can ask us anything, and a lot of things like that. But if you have the subject knowledge, like you know what is on the back of your hand, then you're awesome. And I'm not talking about subject knowledge of everything. Just only one or two things that you love. If you love accounts, so you should know accounts like in and inside out. If you are talking about a particular skill in finance, if you maybe take Excel for that sake, Excel is something which is huge as a tool which is required. If you just know basic things के ऊपर अगर आपको max Excel आता है, so that would be amazing. So what I'm trying to say here is that in all the interviews and anywhere, the confidence is driven by subject knowledge, which is at the core. ठीक है, self awareness है, which is knowing about oneself and being comfortable in your own skin. Then comes the second is subject knowledge. अगर वो नहीं होगा तो आपका confidence थोड़ा सा हल्का सा खोखला हो जाएगा, मतलब मे बी एक या दो ब्लोज में वो टूट जाएगा, फायदा नहीं है. सब्जेक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है. So that is the second aspect. So do online courses, do a lot of certifications here and there, subject certifications पड़े हुए हैं. Just go there, do it, so that
जितना आप करोगे ना उतना आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा अपने सब्जेक्ट को लेके, एंड देन यू कैन टेल दोज थिंग्स and nobody can stop you from getting that job, or starting that business, or cracking that particular interview that needs to take you across. Last but not the least is experience. How many of you have already given interviews? Please put in the comments. Or let's rephrase it. How many interviews have you given? You can just type 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Please put in the comments how many interviews have you given till now? Right. Please put in the comments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके. Okay. So I think I can see a lot of ones and zeros, and then I have 1, 2, 3 also, 4, 5 people also. जो कह रहे हैं 4, 5 interviews भी दिए. Some people are also saying, yeah, we are at 0. We haven't given an interview. And some people are there, we have given 5, 6 interviews, 3, 4 interviews, 9, 10. So one thing is to clear is that, all the people who are given more than 2, 3 interviews, uh, now couple more things, right? Than the people who haven't given interviews. What do you guys think? Yes, couple of more things, because you have been through that process, you have done those mistakes, and that ways things are interesting. And that is the point. Experience gives you a lot of knowledge to take it to the next level. But the question here is that how can we experience interviews? Because matlab, if I'm giving an interview, I want to get selected, and that is where if I don't get selected, I'll be very sad about it. But I haven't given an interview, so go give interviews. So now the question would be, why? How can I give this interview? So one of my friend who was training, who kind of we were discussing about this. In fact, Bhomick, I think आपके साथ discussion हो रहा था ये, and you gave a very interesting point. Is that experience of interview and experience of your field interview is different. Okay, you want experience, right? So apply at places, go and interview at places where you don't want to join. But you are able to touch, taste, and feel the whole process. One time maybe आपका telephonic होगा, maybe you can get into group interviews, maybe you can get into some internships, apply for internships, अच्छे अच्छे profiles आ रखे हैं, they are paying you 2,000, 1,000, 5,000, 4,000, just apply to them. Okay, and get in the process where they are taking your interview, and you give interviews. So join karna nahi karna, that's a different thing. So what they are doing is they are training you for free, and I think that's amazing. Right. So if you have low number of interviews that you have given, just go apply for these internships or jobs which are of non of not which are not of your core industry, and yeah, go for those interviews. Experience जब हो जाएगा, 4-5 interviews, 6 interviews already दे चुके हो, आपको समझ में आ गया है, then when you are batting your main interviews, आपके main 3-4 interview आते हैं, you'll be able to crack them. Right. I think that could be interesting. We have 2 comments saying that not selected in one also, but my confidence is totally low and confused about questions. So Siddhi, that is why we are doing this whole series as well. So don't worry, we'll take up those questions. So that would be amazing. So Shaina says that I applied to 2 internships, got rejected. Do you know how many internships are updated on Internshala या फिर all other places? On a daily basis, there are more than 150 internships that are updated, which accounts to अगर आप 150 into 30 करो तो 4,500 लोग ढूंढ रहे हैं, and that is a lot. That is a lot. तो दो इंटर्नशिप कुछ नहीं होता, अप्लाई करो और करो, मेहनत करो, आपको ये समझ में आएगा कि अप्लाई कैसे करना है, आपको लिखना आएगा, चीजें आएंगी, and that is where you put yourself into the whole thing. Okay, so I think that is the third aspect of the whole thing is keeping your confidence
at the core, जहाँ पर आप self के बारे में जानते हो, that gives you first confidence. Second is आपका जो subject knowledge है, आपकी जो आप जिसके लिए इंटरव्यू कर रहे हो, जो आपकी कोर नॉलेज है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, उसके लिए सर्टिफिकेशंस, उसके कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हो सकते हैं, ऑनलाइन जाओ और पढ़ना शुरू करो और फिर एक्सपेरिमेंटल करो, चीजें करो तो निकल के आएंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपीरियंस करो. जितना एक्सपीरियंस करोगे उतना ग्रो करोगे, पर्सपेक्टिव बढ़ेगा, लोग मिलेंगे, इंटरेस्टिंग चीजें होंगी. सो आई थिंक दैट्स अमेजिंग. आप लोगों में से कितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं? आप लोगों में से कितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं? प्लीज पुट इन द कमेंट्स. यस, नो, यस, नो. ओके, a lot of people. We all are on Instagram. A lot of us are on Instagram. So what I suggest is, maybe what you can do is that Rashi will put a link here of our Instagram channel as well. What you can do is that you can go and follow that, so that we do a lot of sessions like these, and that ways you'll be able to know a lot of these sessions, upcoming sessions, plus a lot of knowledge. अगर आपको कोई भी questions है, yes, we'll be answering those in here, but we'll also be you can also ask your questions at the Instagram page. We are very responsive there as well. So Rashi, you can quickly post the video. Sorry, you can quickly post the Instagram link so that people can see and follow from here, so that they can take it across. In the meanwhile, I would love to have questions. If you have any questions, please put in the comments. हम एक बार questions pick कर लेते हैं. अगर आपके basic building block of confidence में questions है, so that after that we can take it ahead. If you have no questions, just type no questions. Abhishek, कोई questions है? Shruti, Shaina. Okay, so I think we have got a first question. Saying, Akash asked the question, how to maintain the adrenaline rush at the start of the interview? Very good question, Akash. So this happens to us in a lot of situations where we are super new at the whole thing, right? And that adrenaline rush can do two things to you. Okay, either it can make you nervous or it can make you feel confident, and that is where you have to decide how to kind of take it across. Okay, so I'll help you with that. So when you have the start of the interview, whenever you're greeting them or something, before they ask you a question, you start with a compliment. Okay, about anything, start speaking about anything just to break the ice. I'll give you an example. So once you have entered the room, maybe that's an interview, so you can start with, hey, thank you, sir, for this opportunity. I think I'm very lucky to qualify into the interview, and now I'm looking forward for this interview to take it across. Okay, yeah, you can just say, my name is Akash Thakur, and I'm very happy to take this interview across. Thank you. उसके बाद they ask the questions and everything. So what you have done is, आपने जो अपना एनर्जी है वो एक पॉजिटिव फॉर्म में उसमें निकाल के चीजों को सॉल्व कर दिया. I think that would be interesting. So I think just to elaborate yeah. here, Abhishek. So we do have certain exercises also which are available to us, and that is what we teach in our full day workshop which we have. There's a tremendous exercise called Circle of Confidence, which you can do before any public speaking event, whether you have to give a presentation, finally a presentation, interview, GD, whatnot. So there are n number of exercises as well, wherein you can actually hack your mind to for success actually. Okay, I think that's fair enough. I think that's amazing. Something for freshers, without experience. I think we'll be covering this for freshers in the introduction. What we'll be having. Okay. Okay, I think that would be amazing. Great. So I think let's take this thing across. So we'll be, in the meanwhile, we'll be posting the Instagram link. Once we post that, you can just follow that. And Bhomick, I think you can take it up to the next slide from here. Sure. All right, Abhishek. Thank you for walking us through the pillars of confidence, right? So guys, now tell me, how many times it has happened to you that you have cracked a joke, किसी को हंसी नहीं आई,
कितनी बारी ऐसा होता है कि there's a concept on which you are an expert, but someone else comes in and takes the spotlight. क्लासेस में होता है ऐसा, ग्रुप डिस्कशन में होता है, किसी फोरम में बैठे हो होता है ऐसा, राइट? यू फाइंड योरसेल्फ स्ट्रगलिंग टू कम्युनिकेट योर थॉट्स. यार दिमाग में तो है, लेकिन बोलूं कैसे, बात कैसे करूं, इस चीज को मैं कम्युनिकेट कैसे करूं, एक्सप्रेस कैसे करूं. कोई भी इवेंट हो रहा है, यू प्रेफर to sit in the audience rather than stand up and share your ideas. You have that urge to speak, but something, you don't know what, something is holding you back. कुछ तो है जो आपको रोक रहा है बोलने से, राइट? और अगर दोस्तों ऐसा कुछ होता है आपके साथ, अगर इन 5 चीजों में से 2 या 3 चीजें भी अगर आपके साथ होती है, believe me guys, believe you me, you are actually missing out on some big things. In fact, huge things, huge opportunities you are missing out on. Believe me, and I will make it sure that you don't miss out on these opportunities, and that's why public speaking is a must to have skill in today's world. Now just for a moment think, if your public speaking was effective, 1 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचो कि if you were a better speaker, if your communication was better, if your public speaking was effective, won't it have given you a chance to stand out of the crowd? क्या आपकी लाइफ ज्यादा प्रोडक्टिव ना होती? क्या आपकी कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हो अपने रिलेटिव्स के साथ, पीयर्स के साथ, बॉस के साथ, प्रोफेसर्स के साथ, क्या वो ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होती? क्या आपके बहुत सारे फ्रेंड्स और फॉलोअर्स नहीं होते? I have a separate workshop which talks about how to win friends and influence people, and it just talks about this public speaking and communication front, कि किस तरह से आप अपने और भी ज्यादा दोस्त बनाएं और ज्यादा लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर पाए. मैं इस टर्म को नाम देता हूं कॉइन. जो कॉइन होता है, सिक्का, कॉइन, COIN, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. हाउ बिग इज योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस गाइस? जस्ट थिंक अबाउट इट. आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है? वो जितना बड़ा होगा आपकी वैल्यू उतनी ज्यादा बड़ी होगी. आई रिमेंबर अटेंडिंग अ ट्रेनिंग इन IBM बैक इन 2008 की बात कर रहा हूं मैं, आज से 14 साल पुरानी बात कर रहा हूं, लेकिन आज भी वो रेलेवेंट है. मेरे को जो उस ट्रेनिंग में एक लाइन, एक फ्रेज मेरे को सुनने को मिला था, आज तक वो मेरे दिल में है. They said that guys, your network is your net worth. Your network is your net worth. आपका जितना बड़ा नेटवर्क है, जितना इफेक्टिव नेटवर्क है, आप जितना इंपैक्टफुल हो अपने नेटवर्क में, आपका नेटवर्थ उतना ज्यादा है. Believe me, and this is the power of networking, guys. Who knows that better than me, right? So, and अगर आपका पब्लिक स्पीकिंग इफेक्टिव होता, क्या आप अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने गर्लफ्रेंड को, अपने दोस्तों को, सबको कन्विंस नहीं कर पाते विदाउट बीइंग पुशी? एक होता है कि कन्विंस कर लेना इंपैक्ट के जरिए, एक होता है कन्विंस करना पुशी होके कि भाई यार कर देना, तू मेरा दोस्त नहीं है, कर देना यार, देखो आप पापा मम्मी हो ना मेरे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप कर दो ना प्लीज, यू आर बीइंग पुशी हियर, राइट? बट देन इफ यू नो द टैक्स, how to convince other people without being pushy, that is where effective public speaking comes in, and absolutely it will help you to grow you in your career. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. मेरे पास सैकड़ों ऐसे एग्जांपल्स आज की डेट में जिसमें मैंने देखा है कि टेक्निकली जो है दैट रिसोर्स इज वेरी गुड, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है उसका. I'll just give you one example from my previous company wherein a guy developed a solution, a technical solution, जो कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने नहीं किया था, and it was a cutting edge technology solution जो उसने प्रोवाइड किया, right? It was a cutting edge technology. और अगर वो एक ऐसा सॉल्यूशन था कि उसको 1 लेवल प्रमोशन नहीं, उसको 2 लेवल प्रमोशन मिल सकता था सिर्फ उस एक टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से. He actually saved millions of dollars of the company just by that technical thing what he did. But you know what? जब उसको 100 लोगों के सामने, सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में 100 लोगों के सामने बोलने को बोला गया कि भाई आपने किया क्या है, समझाओ तो सही, हवा निकल गई सारी के सारी, नहीं बोल पाया बेचारा. एंड आई फेल्ट सो बैड फॉर दैट गाय कि यार तूने इतना बढ़िया काम किया है, यू हैव सेव्ड कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स. मतलब सीरियसली बता रहा हूं, 1 in 10,000 folks are there जो इस तरह का कोई सॉल्यूशन लेकर आते हैं, 1 in 10,000 और 1 in lakhs even. That guy got an opportunity, लेकिन जब उसको बोलने का मौका मिला बिल्कुल जीरो हो गया. He didn't get any promotion क्योंकि वो चीज को बता नहीं पाया. एंड में क्या हुआ, he had to leave the company, फ्रस्ट्रेशन में आके कि मेरे को जॉब में मजा नहीं आ रहा, प्रमोशन तो देते नहीं, और उसने जॉब छोड़ दी.
This is why public speaking is important, guys. You get that visibility, you get that authority. अगर वो उस दिन बोल पाता तो वो उस दिन डिपार्टमेंट में बोला, फिर हम उसको और बड़ा क्रॉस फंक्शनल टीम्स के अंदर लेकर जाते और फिर कंपनी की टाउन हॉल में उसको एक मौका देते प्रेजेंट करने के लिए, जहां पे कंपनी का सीईओ भी प्रेजेंट होता. जस्ट थिंक अबाउट इट कि किस तरह की विजिबिलिटी मिली होती है और उसका करियर जो है किस तरह से फास्ट फॉरवर्ड 10x या इवन 100x हो चुका होता. Right? So that's where, guys, public speaking is very, very effective as far as your career is concerned. Right? And believe me, the ability to communicate your thoughts, your ideas, and your ability to persuade your peers or seniors can skyrocket the quality of your life. It's not only about professional life, personal life maybe, yeah. Right? It will be more effective life what you'll be living. And as I said, keeping all the skills constant. आप लोग सभी एक कॉलेज के हो, सपोज करिए कि आप सारे फाइनेंस में जाना चाहते हैं, आप सबके पास इक्वल स्किल्स है. आपको कैपिटल मार्केट्स अच्छे से आता है, आपको एक्सेल अच्छे से आता है, आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड अच्छे से आता है. कुछ लोगों ने सीएफए भी कर लिया, बताओ, सीएफए लेवल 1 2 3 चार्टर होल्डर हो, बताओ. और अगर सारे के सारे सेम लेवल पे हो, सपोज, द ओनली डिफरेंशिएटर विल बी योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. And this is not something which I'm talking out of the textbook. This is something I'm talking out of my experience, out of my own experience. 2005 May, I was the first person to get placed via my college. I'm a mechanical engineer, BTech mechanical, right? Delhi se hi padha hua hu, and I was the first person to get what placement. Was it the topper? I was the most average student you can ever think of. मेरी attendance भी पूरी नहीं थी. 70% आते थे मेरे, but I was the first person to get that placement. And just because of public speaking. 2002 में मैंने एक कोर्स किया था पब्लिक स्पीकिंग का, जिसने मेरी लाइफ बदल दी. और and I got my first placement just because of public speaking. Just because of public speaking, guys. And you are living in a world जहां पर 90% of your competition को public speaking नहीं आती. 100 बच्चों की क्लास है, 90 लोगों को पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, हिच है बोलने में, कम्युनिकेशन में दिक्कत है. और वहीं पे अगर आप अपनी कम्युनिकेशन ठीक कर लेंगे तो क्या आप पहले ही अपनी रेस आगे से शुरू नहीं कर रहे? आपको तो पहले से ही एडवांटेज मिल गया यार. तभी ये बहुत ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स आज की डेट में. एंड बिलीव मी, कॉलेजेस में यूजुअली पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, स्पोकन इंग्लिश एंड ऑल दिस स्टफ, इन सब चीजों को क्या एक इलेक्टिव सब्जेक्ट की तरह लिया जाता है, राइट? आई ट्रूली बिलीव कि कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, इस सब्जेक्ट को एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बनाना चाहिए. बिकॉज गाइज यही एक ऐसा स्किल है जो आपको आगे लेकर जाएगा. आपके टेक्निकल स्किल्स फिर भी आपको एक लेवल तक लेके जाएंगे, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स क्यों? क्योंकि आप हर वक्त आप किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो? आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो. Excellent communication skills should be a mandate, and it is a mandate in the new global diverse workplace. भाई ग्लोबल एंड डाइवर्स वर्कप्लेस में तो आपके मैंडेट है अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स, बट वही चीज कॉलेज में क्यों नहीं सिखाई जाती, स्कूल्स में हमें क्यों नहीं सिखाई जाती? ये बिल्कुल एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए. एंड एज यू कैन सी, दिस पब्लिक स्पीकिंग इज अ वाइड ओशन, राइट? इट इज अ वाइड ओशन. एंड व्हाट यू कैन सी हियर इज वी आर जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन द इंटरव्यूज. वो जो एक रेड एरो दिख रहा है आपको, दैट्स जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट. एक छोटी सी मछली है इस बड़े से ओशन में, जिसको आज हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, राइट? और बिलीव मी, अगर आप इतना भी समझ लें तो आपके लिए ये जो 90 मिनट्स आज आपने स्पेंड करे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका रिटर्न बहुत जबरदस्त होने वाला है आपके लिए, राइट? एंड नाउ आई विल टेल यू दैट हाउ यू कैन यूज पब्लिक स्पीकिंग एज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट पता है क्या होता है? एनी आइडिया? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, व्हाट्स अ कैटलिस्ट? किसी को पता है कैटलिस्ट क्या होता है? Catalyst, what is a catalyst? No, okay, that's okay. Anyone else? Something that makes the reaction fast? Absolutely. Very nice, Shivam. Boosting the chemical process? Absolutely. So आप अगर ये सोचे कि इंटरव्यू आप जो दे रहे हैं वो एक प्रोसेस है, राइट? इंटरव्यू के सक्सेस की तरफ जो आप जा रहे हैं वो एक प्रोसेस है. उस प्रोसेस को तेज कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग, राइट? एंड वी विल लर्न हाउ. So let's try to understand this thing. I think someone asked the question कि सर शुरुआत में नर्वसनेस होती है, राइट? जिटरी होते हैं हम लोग थोड़े से, क्या करें? एंड अभिषेक गिव अ वेरी नाइस, वेरी पावरफुल सजेशन कि भाई इससे पहले कि वो कुछ बोले आप ही कुछ बोल दो,
राइट, और उससे यू ब्रेक द आइस, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया और उनको भी लगेगा कि हाँ यार ये तो कुछ अलग ही बंदा है, क्योंकि यूजुअली सारे ऐसा नहीं करते, राइट, जैसा अभिषेक ने बताया। तो यू गेट एन एज, बट यूजुअली द इमोशंस व्हाट यू फील बिफोर एन इंटरव्यू, चाहे एक दिन पहले, एक रात पहले या एक हफ्ता पहले भी आपको डर लगने लगता है, यू आर नर्वस, यू आर फियरफुल, यू आर अनश्योर, यार पता नहीं उसने क्या पूछ लिया, ये पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगी, यार कहीं एक्सेल ना पूछ लिया, यार एक्सेल तो नहीं आती मेरे को, यू नो अनक्लियर होता है। दिस इज हाउ your nails tend to get short if you are a nail biter, right? when you are anxious. So ये सब चीजें होती है, लेकिन कभी हमने सोचा है कि ये सब चीजें क्यों होती हैं, इन इमोशंस के पीछे वजह क्या है? दोस्तों, इन इमोशंस के पीछे वजह सबसे बड़ी है कि हमें ना तो खुद के बारे में पता होता है और ना ही अपने ऑडियंस के बारे में पता होता है। We go ahead for public speaking, we go ahead for that opportunity without knowing about ourselves and without knowing about the audience. अब यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग क्या है, यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में पब्लिक स्पीकिंग है इंटरव्यू, मतलब कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो विदाउट नोइंग अबाउट योरसेल्फ एंड विदाउट नोइंग अबाउट द ऑडियंस। हु इज द ऑडियंस हियर? जो इंटरव्यू ले रहा है, राइट, जो इंटरव्यूअर है वो आपका ऑडियंस है। तो आपको अपने बारे में तो कुछ पता नहीं है, या अपने बारे में चलो थोड़ा बहुत पता है, लेकिन इंटरव्यूअर के बारे में क्या पता है आपको? What do you know about the company जहां पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो? And this is the biggest mistake we do, and that is the cause of your worry. But hold on your thoughts, guys. I will tell you how you can become from a warrior to a warrior of an interview. How many of you want to become that warrior? Just write W. Just write W in the chat box, guys. Just write W in the chat box. ज्यादा बड़ा नहीं लिखवाऊंगा, W लिख दो बस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे माइंडसेट पे, बिकॉज एक बार अगर आपने यहां पे जीत ली ना जंग, तो जो मैदानी जंग है ना वो आसान हो जाएगी। एक बारी अगर आपने यहाँ पे जंग जीत ली तो जो मैदानी जंग है वो बहुत आसान हो जाएगी, और यहाँ पे जंग कैसे जीतना है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि जो आप जॉब लेने जा रहे हो, राइट, इंटरव्यू देने जा रहे हो, इट्स अबाउट योर द पे चेक एट द एंड ऑफ द डे। यार मेरे को सैलरी मिलेगी, मेरे को पैसा मिलेगा, मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं ये करूंगा वो करूंगी। सो हमारा माइंडसेट कहाँ पे होता है? हमारा माइंडसेट होता है ऑन द पे चेक। हमारा माइंडसेट क्या होता है कि मेरे को क्या मिलेगा इस इंटरव्यू से, मेरे को जॉब मिलेगी तो जॉब के साथ साथ एंड ऑफ द मंथ क्या मिलेगा? पैसा, सैलरी मिलेगी, पे चेक मिलेगा, राइट। हम सबका फोकस 95% ऑफ द फोक्स का फोकस क्या होता है? अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी जॉब मतलब अच्छा पैसा, अच्छा पैकेज मतलब अच्छे रिश्ते एंड व्हाट नॉट, यू नो हाउ द सोसाइटी वर्क्स। राइट इन द चैट बॉक्स इफ आई एम रॉन्ग। अगर आप मेरे साथ है तो जस्ट राइट यस। अगर आप मेरे साथ है, आप सोचते हैं कि हाँ यार हमारा यही माइंडसेट होता है कि ऑब्वियसली जॉब मिलेगी तो सैलरी इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर, राइट, बिगेस्ट फैक्टर। और यहीं पे हम लोग मार खा जाते हैं। आई टेल यू व्हाई। यहीं पे हम लोग मार खा जाते हैं। यहाँ पे ना, जब आप इस माइंडसेट के साथ जाते हो कि मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, तो आप एक किस साइड पे हो? आप एक मांगने वाली साइड पे हो, राइट, कि आप एक यहाँ पर यू आर द पर्सन जिसको कुछ चाहिए, यू आर द सीकर। बट एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग फ्रॉम अ कंपनीज पर्सपेक्टिव। कंपनी क्या चाहती है? कंपनी की तरफ की बात सोचिए आप। कंपनी ये चाहती है कि भाई इतनी भीड़ है, इतने सारे लोग आ रहे हैं इंटरव्यू में, एक बंदा तो हमें ऐसा मिल जाए जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, प्लीज हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आप यहाँ पर जब इंटरव्यू देने जाते हो, आप क्या सोच रहे हो? यार मेरे को ये जॉब मिल जाए, मेरे को पैसा चाहिए। और यहाँ पे कंपनी क्या कह रही है? कंपनी कह रही है यार एक बंदा कोई ऐसा मिल जाए जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। यू अंडरस्टैंड उनका माइंडसेट क्या है? एंड दिस इज एक्चुअली द माइंडसेट। आई पर्सनली right now I'm struggling with this because I want to hire some folks, और मेरे को मार्केट में अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं अपनी टीम के लिए। this is actually the thing which I'm going through. So it's not about you, it's not about your paycheck, it's not about your salary, it's about their problem getting solved. और अगर आपको लगता है कि आप इस कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप किस माइंडसेट के साथ जाएंगे? आप इस माइंडसेट के साथ नहीं जाएंगे कि मेरे को तो यार नौकरी चाहिए, सैलरी चाहिए। आप इस माइंडसेट के साथ जाएंगे, हे यू गॉट अ प्रॉब्लम, आई हैव द सॉल्यूशन। आपके पास प्रॉब्लम है, आपकी ये प्रॉब्लम है, मेरे पास सॉल्यूशन है इसका, तो मैं तो आपको सॉल्यूशन देने आया हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने थोड़ा आया हूँ। मतलब इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट
ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि बस मैं ही मैं हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आइडिया ओवर हियर? जस्ट राइट यस और ऑसम इफ यू लाइक दिस आइडिया, बिकॉज ये माइंडसेट चेंज है गाइस। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है और इसके बाद एक और दूसरी इंपॉर्टेंट स्लाइड आएगी जो कि इस पूरे के पूरे सेशन का जिस्ट है, राइट? सो इट्स नॉट अबाउट यू। और पब्लिक स्पीकिंग का भी रूल है यार, पब्लिक स्पीकिंग का भी रूल है कि ये मेरे बारे में नहीं है, इट्स नॉट अबाउट द स्पीकर, इट्स अबाउट द ऑडियंस। शुरुआत में मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन दी, अभिषेक की इंट्रोडक्शन दी यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी बारी टेडेक्स में गया हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने कितने इंटरव्यूज लिए हैं या दिए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पिछले बेशक 100 सालों से ट्रेनिंग्स दे रहा हूं। अगर इन 90 मिनट में मैं आपको वैल्यू नहीं दे पाया ना, तो आई एम नथिंग। तो मतलब कि ये पब्लिक स्पीकिंग किसके लिए है? ये आपके लिए है। क्यों? आप मेरी ऑडियंस हो। सो पब्लिक स्पीकिंग का तो पिलर है, रूल है, जो कहता है कि भाई इट इज जस्ट अबाउट योर ऑडियंस। और इंटरव्यू के केस में आपकी ऑडियंस कौन है? दो ऑडियंस है आपकी, ध्यान देना, दो ऑडियंस है आपकी, एक जो इंटरव्यू ले रहा है वो, और दूसरा जो कंपनी जिसके अंदर आप जा रहे हैं, राइट? सो पिलर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग भी कहती है कि भाई आप अपना ऑडियंस को तो देखो। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया? अच्छा, उससे पहले टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू डू दिस थिंग कि आपने, सपोज करिए कल आपका इंटरव्यू है, ध्यान से सुनना, कल आपका इंटरव्यू है, आपने तैयारी शुरू करी, आपने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू, ये वो एक्सेल सीए पता नहीं क्या क्या सब चीजें कर ली। और जैसे ही कल सुबह सपोज करिए 11 बजे इंटरव्यू है, आप 10 बजे जगह पे पहुंच गए, और यार कंपनी के बारे में तो पढ़ा नहीं, अरे जल्दी यार इंटरनेट खोल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक्स टू 4G, हाँ हाँ ये कंपनी करती है, कंपनी करती है, 5 मिनट पढ़ा एंड डन। हाउ मेनी ऑफ यू डू लाइक दिस? टेल मी। लिखो, जस्ट राइट आई। ओके, जानवी सेज हाय, ओके वेरी गुड। हाँ, सारे सारे ऐसा करते हैं, विच इज फाइन, मैं भी ऐसा करता था यार, है ना? लास्ट में जाके बिल्कुल हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा यार ये है कंपनी है, अच्छा अच्छा अच्छा, इतना इतना रेवेन्यू है, इतने एम्प्लॉइज है, इतना ये है, इतना ये है, चल यार हाँ हाँ हो गया, अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ऐसा करते हैं हम लोग। यू नो व्हाट, हम लोग यही चीज बहुत गलत करते हैं। आप ये समझिए कि आप पब्लिक स्पीकिंग में एक स्पीच देने जा रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि आपकी ऑडियंस कौन है, और आप बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल 5 मिनट पहले आप ये देखते हैं कि भाई मेरी ऑडियंस को चाहिए क्या। लेकिन अब होगा क्या, 5 मिनट में आप अपनी जितनी भी प्रिपरेशन करिए वो थोड़ा ना चेंज कर लेंगे। आप प्रिपेयर कर चुके हो, उसके बाद आप पूछ रहे हो कि भाई ऑडियंस कौन है, बताना किसको है। ऐसे नहीं चलता, आपको इस प्रोसेस को टोटली उल्टा करना होता है गाइस। आप इस चीज को टोटली उल्टा करना होगा, क्योंकि इस चीज की वेटेज बहुत ज्यादा है। पेरेटो प्रिंसिपल पता है सबको? 80-20 प्रिंसिपल पता है कि 20% अगर हम एफर्ट अगर हम 20% ऑफ द थिंग्स पे एफर्ट लगाए तो वो हमें 80% रिजल्ट देता है, राइट? और इस केस में यही वो 20% है जिसपे आपने अगर फोकस दे दिया, आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व है। बिलीव मी गाइस, आपकी 80% प्रॉब्लम इंटरव्यू की सॉल्व हो जाएगी। पहला तो माइंडसेट में आप जीत गए, और दूसरा ये दो चीजों पे काम कर लिया आपने, यू विल बी अ विनर, आई टेल यू। और कितने लोगों ने ऐसा सुना है कि यार कंपनी के बारे में पढ़ना होता है, कंपनी के बारे में पढ़ना होता है। कंपनी के बारे में पढ़ना तो होता है, लेकिन पढ़ें क्या? ये स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा कि आपने क्या पढ़ना है। जो भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कल परसों अगले हफ्ते, जब भी जो कंपनी आपके कैंपस में आ रही है, कल परसों अगले हफ्ते जब भी, आपने ये देखना है कि वो कंपनी कौन से सेक्टर में है। ध्यान से सुनिएगा, सेक्टर कौन सा है? रिटेल है, फाइनेंस है, हेल्थ केयर है, फाइनेंशियल है, कैपिटल मार्केट्स है, इन्वेस्टमेंट बैंक है क्या भाई? आ कौन रहा है कंपनी में? ठीक है, अगर तो वो प्रोडक्ट है तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स है उनके, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, और कंपनी पैसा कैसे कमा रही है, कंपनी के वैल्यू स्ट्रीम्स क्या क्या है, राइट? कंपनी कहां कहां से पैसा कमा रही है, राइट? और अगर कंपनी एक सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके क्लाइंट्स कौन कौन है, राइट? क्लाइंट्स कौन कौन है, क्योंकि एक सर्विस कंपनी किस तरह से ऑपरेट करती है, एक सर्विस कंपनी के चैलेंजेस वर्सेस अ प्रोडक्ट कंपनी के चैलेंजेस में जमीन आसमान का फर्क होता है, आपको वो समझने होंगे, राइट? वेबसाइट पे जाके ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है आज के टाइम पे, यू गेट ओनली कंफ्यूज्ड। वहां पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है सर्च न्यूज, सर्च इन द न्यूज अबाउट दैट कंपनी, सर्च इन द सोशल मीडिया। आज की डेट में लगभग हर कंपनी सोशल मीडिया, खासतौर से लिंक्डइन पे एक्टिव है। वहां जाके देखिए कि ये कंपनी क्या करती है, इसके रीसेंट माइलस्टोन्स क्या है, इस कंपनी का कल्चर क्या है, इस कंपनी का विजन क्या है, क्या आप फिट होते हो यहाँ पर इस कंपनी के कल्चर और विजन में? ये ऑब्वियसली एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, बट आपको कहीं ना कहीं इस पर्सपेक्टिव का पता होना चाहिए।
आप ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या है जो ये कंपनी नहीं कर रही है और इसके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं। और अगर ये कंपनी इसका 1% भी कर लेना तो ये कंपनी आगे जा सकती है। और अगर आप उस कंपनी को आगे ले गए, उस कंपनी को ग्रो करा गए, तो ऑब्वियसली उस कंपनी के साथ साथ आप भी ग्रो होगे, इसमें कोई दो राहें नहीं। नेक्स्ट इज इफ यू कैन गेट टू सम इंटरनल कनेक्ट्स। नेक्स्ट, स्टडी अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भाई वो मांगते क्या है, मांग क्या रहे हैं, क्या मैं इसके लिए फिट हूं भी या नहीं हूं। यूजली आई अंडरस्टैंड आप लोगों की भी प्रॉब्लम कि यूजली जो जेडी, जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वो पूरा नहीं होता है। आई नो कि ये इशू रहता है, बट अगर आप बाकी ऊपर वाले बॉक्सेस को टिक कर लेंगे ना तो आपको आरएनआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिलीव मी, आपको जो भी आरएनआर दिया होगा आप उसके हिसाब से सेट हो जाएंगे। एंड वन लास्ट प्रॉब्लम, आप ये देखिए कि इंडस्ट्री किस जगह जा रही है। ध्यान से सुनेगा, आप ये देखिए कि इंडस्ट्री किस जगह जा रही है और एक ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसने आज इस कंपनी को रोका हुआ है और वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, या इसको एक नेक्स्ट सेट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम अगर कैपिटल मार्केट्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें, जितने भी बैंक्स है वो अब पुराने, आई रिमेंबर आई वाज इन अमेरिका एंड आई हैड दिस बैंक अकाउंट इन बैंक ऑफ अमेरिका, राइट, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि उनका 80% ऑफ द बिजनेस ऑनलाइन ही चलता है। मिनिमम ब्रांचेस यार, मिनिमम, एक इतने बड़े शहर में सिर्फ एक ही ब्रांच, और वो भी छोटी सी, इतनी सी, सिर्फ 5 लोग काम कर रहे हैं वहां पे। आई वाज सो सरप्राइज्ड टू सी एवरीथिंग वाज डिजिटलाइज्ड। और आज की तो नीड है डिजिटलाइजेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें उसकी क्या प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं अपने स्किल सेट से। ऐसा नहीं है कि आप है तो फाइनेंस के बैकग्राउंड से, बीसीए के, बीबीए के या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, और आप सॉल्व करने चले गए उनकी कुछ और प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है, रिलेटिव होना चाहिए, कंटेक्स्ट में होना चाहिए, राइट। एंड देयर इज वन मोर टूल कॉल्ड लिंक्डइन। आई होप यू ऑल आर ऑन लिंक्डइन। लेकिन व्हाट गिव्स मी a really sad picture and I feel sad about it कि most of the freshers are on LinkedIn, लेकिन उनका प्रोफाइल क्या है यार, कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक अनप्रोफेशनल सी फोटो लगा रखी है और सिर्फ अपने बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, दैट्स इट। लिंक्डइन को यूज करो दोस्तों, एंड देयर अ सेपरेट वर्कशॉप कि लिंक्डइन को आप किस तरह से लेवरेज कर सकते हो अपने करियर सक्सेस के लिए। एंड I'll make sure कि you don't reach out to companies, companies will reach out to you. आप एक अपना ऐसा ब्रांड बना लोगे लिंक्डइन पे कि कंपनीज आपको रीच आउट करेंगे। So that's another thing, right? Now ध्यान से सुनेगा, अब आपने वो पीछे वाले डब्बों पे क्लिक कर दिया, राइट, जो पीछे बॉक्सेस थे उन सबको आपने समझ लिया। Now what you have to do is, यहाँ पिछले स्लाइड में क्या था, ध्यान से सुनना, पिछले स्लाइड में क्या था, आपने कंपनी के बारे में सारा होमवर्क किया, राइट, वो बॉक्सेस थे कि आपने देखा कि कंपनी का कल्चर क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, कॉम्पिटिटर क्या है, सर्विस है, प्रोडक्ट है, क्लाइंट्स को नहीं, ये सब चीजें। अब इस हाथ पे आप लेकर आओ क्या, आपके स्किल सेट्स क्या है। रिमेंबर बचपन में मैच द फॉलोइंग करते थे, एक जगह रख दिया और दूसरी जगह रख दिया, फिर वो मैच द फॉलोइंग करते थे हम बचपन में, वही चीज करनी है। यहाँ पे कंपनी को क्या चाहिए, यहाँ पे आप क्या दे सकते हैं। आपको अपना स्किल सेट अलाइन करना है कंपनी के साथ कि आप कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई टू फॉर्म ग्राउंड विद योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स। एक क्वेश्चन आया था कि सर मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, विच इज फाइन, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस नहीं है, विच इज फाइन। आप अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस बता सकते हो, राइट, कि उसके अंदर आपने क्या क्या चीज किया। आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हिसाब से बता सकते हो। आप कुछ इंटर्नशिप्स के करके उसके बारे में आप बता सकते हो। बट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इज डेफिनेटली अ थिंग टू टॉक अबाउट इफ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। एंड आई आल्सो मैं आपकी पूरी इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करवाऊंगा आने वाले 2-3 स्लाइड्स में कि किस तरह से आपको इंट्रोड्यूस करना है खुद को और क्या क्या चीजें बोलनी है। देन सी टेक एक्स्ट्रा करिकुलर टू योर एडवांटेज। कितनी बारी ऐसा होता है यार, मैं सीवीज पढ़ता हूँ या मैं इंटरव्यूज में उनसे पूछता हूँ, हाँ जी, आई लव डांसिंग, आई लव सिंगिंग। अरे भाई मैं क्या करूँ, हाउ डज इट हेल्प सॉल्व मी माई पर्पस। मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही ना एज अ कंपनी, राइट। तो बट आई टेल यू हाउ टू यूज योर एक्स्ट्रा करिकुलर टू योर एडवांटेज। आइडेंटिफाई व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स कैन यू सॉल्व। आपने कंपनी के बारे में पढ़ा था, आपको पता चल गया यार इसकी ना ये 5 प्रॉब्लम्स हैं, इन 5 में से मुझे लगता है ये 2 प्रॉब्लम है ना, इसमें मैं सॉल्व तो नहीं बट थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और आप बिलीव करिए उतना ही बहुत है। आपको पूरा का पूरा फन्ने खां बन के वो सॉल्व नहीं करनी है प्रॉब्लम, आपको सिर्फ एक उसमें हेल्प करके, असिस्ट करके उसको नेक्स्ट स्टेप तक लेकर जाना है, राइट। और उसको ये भी बताइए कि सपोज करिए आप एयरटेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जियो आज की डेट में बहुत ऊपर जा रहा है, टेल देम कि जियो ने कस्टमर एक्विजिशन कैसे किया, एयरटेल क्यों नहीं कर पा रहा।
एयरटेल तो बहुत पुराना है यार, लेकिन जियो ने एकदम से आके मार्केट डिस्टर्ब कर दिया। और अब एयरटेल को क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है एयरटेल को क्या करना चाहिए कि वो जियो के जो कस्टमर्स हैं उनको वापस ले सके, या अपने कस्टमर्स को वापस ले सके, अपना कस्टमर एक्विजिशन बढ़ा सके? जस्ट एन एग्जांपल, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, किसी भी चीज को फज नहीं करना है। आई एम टोटली अगेंस्ट इट एंड आई विल टेल यू ऑल्सो कि एथिकल रहिए, किसी भी चीज को फज मत करिए, गलत मत बोलिए, क्योंकि वो कल परसों में पकड़ी जाएगी, राइट? दिस इज वन थिंग जो लोग करते हैं और जो नहीं करना चाहिए। नाउ आई जस्ट स्टॉप फॉर अ क्विक पल्स चेक। हाउ आर यू फीलिंग गाइस? मजा आ रहा है, तेज है, धीरे है, या सेशन में अभी आगे हम चल रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग? जस्ट वन लाइन इफ यू कैन राइट। ओके, कुछ चेंज चाहिए? मजा आ रहा है? ओके, यू आर सेइंग यू आर एंजॉयिंग, परफेक्ट, इंफॉर्मेटिव, अमेजिंग, वांट टू लर्न मोर, वेरी नाइस। और कौन कौन लोग सो गए हैं ये बताओ पहले। सो गए लाइक वो भी स्क्रीन। टाइप करो कि मैं सो रहा हूँ। हाँ। दिस इज समथिंग रियल, एब्सोल्युटली दिस इज रियल, यस। जो सो रहे हैं वो भी बोलिए मैं सो रहा हूँ। भाई सो रहे हैं वो तो उठ जाओ कि भाई हाँ ठीक है हम जाग रहे हैं, वी आर नॉट आस्किंग यू टू डू दैट, ओके दैट्स अमेजिंग. So a lot of people are up and they're getting a lot of interesting value. I think that's वेरी amazing. नाइस, वेरी Great, नाइस। ठीक great. है, लेट्स मूव ऑन देन, लेट्स मूव So ऑन। I think ओके, let's move on. In the meanwhile, I हाँ, think Rashi, what you can do is that Rashi, why don't you put the Instagram link so that they can also follow Instagram, and from there they can get more details about the things. Also, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें बता रहे हैं आपको, हम Okay, sir. मतलब what we are trying to do here is that हम लोग मतलब this is essentially a longer program जो हम generally offer करते हैं, बट जैसे हम लोग इसको थोड़ा क्रैम डाउन करके इसके जो मेन क्रक्स चीजें हैं वो हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं in this whole session. So try making a lot of notes and that way things would be interesting. And if you guys think कि यार हम लोग को थोड़ा सा और थोड़ा longer program करना है या फिर जो 2-3 दिन का या 4-5 दिन का टाइप का कुछ करना है, तो वी कैन प्लान दैट एज वेल. आप अपने जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है उनसे बात करना, एंड देन यू नो वी कैन प्लान समथिंग टुगेदर एंड फिर आपको वो चीज हम डिलीवर कर सकते हैं. Okay, go follow 10,000 speakers. We do a lot of things around the same thing, public speaking and other things. थोड़ा सा break भी हो जाएगा हल्का सा आपका, and I think that way it would be amazing. Bhomick, do you want to like have a like 2 minute break or so? या दैट Works? शुड बी फाइन। आई थिंक जस्ट गाइस 1 थोड़ा मिनट। सा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा हैवी हो गया है. तो जिन जिन को पानी पी के आना है आप पानी पी के लेके आइए. ठीक है. जो लोग बैठे हैं थोड़ा सा खड़े हो जाइए, पैर सुन हो गए होंगे. जिनको मतलब थोड़ा सा जिनको बहुत देर से देख रहे हैं तो आंखें बंद कर लीजिए. वट एवर वर्क्स फॉर यू. ठीक है ना. थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करो. जस्ट बी रिफ्रेश, क्योंकि यार देखो पॉइंट इज कि वी वांट फुल फुल एक्सपोजर आपका होगा तो वहां से चीजें इंटरेस्टिंग होकर निकल के आएंगी, क्योंकि ये जो चीजें आज हम बता रहे हैं ना, कल आप इंटरव्यू में बैठोगे अगर आपको ये याद होंगी या फिर आप इसको प्रैक्टिकली देखोगे तभी ये चीजें वर्कआउट करेंगी. ये वो ऐसे लेक्चर्स के लिए नहीं है कि मतलब सुन लिया भूल गए. वैसे नहीं करना. नहीं तो दोनों का हम लोग दोनों का टाइम वेस्ट हो जाएगा. Okay, so please ping me. How many glass of waters do you drink by the way in a day? आजकल में. और जो जो पानी पी के आ रहे हैं वो भी बता सकते हैं, जो जो बैठे हैं वो भी बता सकते हैं. I think a lot of folks have gone to drink water. Abhishek says that winters. Abhishek says 8 glass of water. Okay. Dhruv says 12 to 15 glass of water. क्या बात कर रहे हो? इतना पानी क्यों पी रहे हो? Okay, a lot of 3 bottles. Okay, that is a lot. आप ये भी डाल सकते हो अपने सीवी में ना. That could be also be interesting. Like, and by by the way, my hobby is drinking water, and I drink 15 glasses of water daily. That's fabulous. Okay, awesome. So let's get back. So once you're ready, just type ready in the chat box. ठीक है. Just type ready because इसके अगले सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं मेजरली ऑन इंटरव्यूज के अंदर आपकी सीवी को लेके थोड़ा बात करेंगे कि भाई रिज्यूमे और सीवी में क्या डिफरेंस है और सीवी के अंदर क्या क्या चीजें रखनी है. फिर हम और बात करेंगे कि आपके पर्सनल इंटरव्यूज, वन ऑन वन इंटरव्यूज और ग्रुप इंटरव्यूज में क्या क्या डिस्कशंस होते हैं और कहाँ कहाँ पर आप क्या क्या चीजें ठीक कर सकते हैं. एंड उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके आएंगे क्वेश्चंस के लिए. ठीक है.
So I think we are good, Bhomick. A lot of energy is there with a lot of people here. So let's take this. Absolutely. Sure. All right. Okay, guys. So we are back here, right? Thanks for the amazing response, and I'm hoping that you are getting a lot of value out of it. Cool. That makes me more happy. Okay. All right, guys. So again, जैसा कि अभिषेक ने बताया कि hundreds of applications आती है. How will you make sure that you stand out? और उस सबसे पहला स्टेप होता है रिज्यूमे का, राइट? रिज्यूमे स्टैंड आउट करना चाहिए बिल्कुल. सो यू नो आई हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस एज वेल, जहां पे मेरे पास बहुत सारे रिज्यूमेस आते हैं. If you check out my LinkedIn, I am posting a lot nowadays because my company is hiring a lot. So I'm posting a lot of that hiring initiatives and all those things, and I'm getting a lot of resumes. So what is my point of view, or what are those interviews या HR का point of view कि भाई बहुत सारे resumes आ गए, छटनी कैसे करनी है, stand out कैसे होगे? First thing, because you are freshers, right? And even I say the same thing till the 10 years of experience, folks, कि भाई अपना रिज्यूमे जो है ना वो एक पेज का रखो. अपना रिज्यूमे कितने पेज का रखो? एक पेज का. आई सी 5 पेजेस का रिज्यूमे इतना सारा भर रखा है उन लोगों ने. यार क्या फायदा उसका? कोई नहीं पढ़ेगा, किसी के पास कोई टाइम नहीं है. सिर्फ एक पेज, और उस एक पेज को कंसिडर, उस एक पेज को ट्रीट करो रियल एस्टेट की तरह, कि आपने ये जो एक पेज है ना, इसको एक 100 गज का प्लॉट समझो, और आपने ये खरीदा है, और आप उसके अंदर सिर्फ वही चीज रखोगे जो रिलेवेंट है, जो आपका इंटरव्यूअर, जो आपका HR देखना चाहता है, सुनना चाहता है. एंड अगेन इट विल, और आप उसके अंदर जो चीजें लिखोगे वो कहां से आएगी? वो उसी स्लाइड से आएगी जो आपने होमवर्क किया था अपनी कंपनी के बारे में, और आपने जो होमवर्क किया था अपने बारे में, और इन दोनों का जब आपने मैरिज करवाई थी कि कंपनी को क्या चाहिए और आपके पास क्या स्किल सेट है, इनकी जो मैरिज करवाई थी, आपने वही चीजें लिखनी है रिज्यूमे में. दैट्स इट. उसके अलावा और कुछ नहीं लिखना. no one gives a damn about the languages you can speak unless and until it is a language specific job, राइट? अगर आप किसी जर्मन लैंग्वेज के लिए कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप जर्मन के बारे में लिखोगे, राइट? बट अगर आप एक नॉर्मल कंपनी में एक ऑपरेशनल जॉब के लिए कर रहे हो तो वहां पे क्या फर्क पड़ता है यार, राइट? कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता. हॉबीज किसी को फर्क नहीं पड़ता. आपके मम्मी क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर कंटेक्स्ट. जनरल केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस, ये सब चीजें नहीं लिखनी है. नाउ आफ्टर रिज्यूमे, once your resume gets selected, मैंने क्या किया था, मैंने अपने रिज्यूमे के केस में फ्रंट पेज पे मैंने 2 बॉक्सेस बनाए थे. एक बॉक्स के अंदर मेरा सारा का सारा 12 साल का एक्सपीरियंस, सिर्फ एक बॉक्स में मैं, और ये एक पेज की ही बात कर रहा हूँ, सारा का सारा एक्सपीरियंस मेरा 12 साल का, ये आज से 3 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं, सब डाल दिया. और नीचे मैंने क्या लिखा कि भाई क्योंकि मेरे को 12 साल हो गए हैं, मैं लीडरशिप पोजीशन पे भी रहा हूं, तो मैंने थॉट लीडरशिप में क्या किया, मैंने कंपनी की कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी, मैंने एक और डब्बा बनाया था. सो 2 बॉक्सेस थे मेरे, और सबसे ऊपर एक करियर की मेरी प्रोफेशनल समरी थी, और उसके ऊपर मेरे आइकन्स थे जो भी सर्टिफिकेशंस करी है. दैट्स इट. एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड इंटरव्यूअर्स टू या HR टू सी, कि हाँ भाई ये बंदा ने ये 5 सर्टिफिकेशन का रखी है, मैच करती है. अच्छा ये चलो ठीक है, समरी छोड़ो. अच्छा ये इसने ये सब काम कर रखा है, इसमें से 10 में से 8 चीजें मैच करती है, ठीक है. अच्छा थॉट लीडरशिप में भी इसने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी है, यार हमारी कंपनी में भी ये प्रॉब्लम है, इसको बुला लेते हैं. कितना टाइम लगा? 1 मिनट. आपका रिज्यूमे आ गया और आपको कॉल आ गई. अब आपको कॉल आ गई इंटरव्यू में, और वहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है? टेल मी अबाउट योरसेल्फ. मेरे को आज तक समझ नहीं आई यार, जब आपके हाथ में रिज्यूमे है, इंटरव्यूअर के हाथ में रिज्यूमे है, वो पहला क्वेश्चन क्यों पूछता है? यार पढ़ लेना भाई, रिज्यूमे में क्या लिखा है वही तो हूं मैं. बट देन ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप खुद को आर्टिकुलेट कैसे करते हैं, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, राइट? आर यू प्रेजेंटेबल और नॉट? अदरवाइज रिज्यूमे उनके पास है, पूरा का पूरा हर चीज उनके पास है. अगर आप सोशल मीडिया पे आपकी पूरी कहानी है, सब कुछ देख सकते हो, राइट? बट देन स्टिल दे आस्क द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ. अब इस टेल मी अबाउट योरसेल्फ में बोलना क्या है वो हम बाद में कवर करेंगे. पहले बात करेंगे बोलना कैसे है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू लुक एट योर कॉन्फिडेंस. बंदा कॉन्फिडेंट कितना है यार, द कैंडिडेट कितना कॉन्फिडेंट है, राइट? एंड ऑल्सो आई बिलीव दैट इट इज नॉट व्हाट यू स्पीक, इट इज हाउ यू स्पीक मैटर्स.
It is not what you speak, but how you speak matters, right? तो सबसे पहले आपने शुरुआत करनी है greeting से. Obviously, you will be greeting. That's the basic etiquettes. You have to give a smile and eye contact. Eye contact रखना बहुत जरूरी है यार. घूरना नहीं है इंटरव्यूअर्स को, राइट? एक सटल सा आई कांटेक्ट रखना बहुत जरूरी है उन लोगों के साथ. एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन कीपिंग द आई कांटेक्ट, एक गोल्डन टिप है, उनके यहाँ पर देखो, फोरहेड पे. उनकी आंखों में देखो ही मत, उनके फोरहेड पे देखो. उनको ऐसा लगेगा कि यू आर मेंटेनिंग दैट आई कांटेक्ट एंड दैट रियली गिव्स अ लॉट ऑफ वैल्यू. डू अ फर्म हैंडशेक. डू अ फर्म हैंडशेक और ओनली एंड ओनली इफ दे ऑफर. ऐसा नहीं कि आप सीधा ही जाके हेलो सर मेरा नाम भौमिक है, हेलो सर, नहीं. हाथ खुद नहीं ऑफर करना. अगर वो ऑफर करते हैं, then offer your hand and give a firm handshake, a firm one like this. वो ढीले वाला नहीं जो हम दोस्तों के साथ करते हैं, right? And then start by saying thank you for this opportunity to speak about myself. Thank you sir for giving me this opportunity, right? Next slide is the next thing is very important. How do I take my name? अक्सर मतलब एक और चीज है जो मेरे को बहुत सैड करती है, and I want to change this totally. I want to eradicate it, right? कोई भी अपना इंट्रोडक्शन प्लीज ऐसे नहीं देगा, माई सेल्फ भौमिक सेन, माई सेल्फ भौमिक सेन. दिस इज अ सिन. मेरे लिए पाप है, ठीक है? इसको मत बोलना. बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, इट रियली टर्न्स मी डाउन, राइट? यू जस्ट बी सिंपल. माय नेम इज भौमिक. हेलो सर, माय नेम इज भौमिक. हेलो सर, माय नेम इज भाग्यश्री. हेलो सर, माय नेम इज राशि, राइट? इस तरह से. That's it. ये myself मत बोलना प्लीज, ठीक है? Then a verbal jewelry. Verbal jewelry क्या होता है? There are some phrases, some metaphors you can use, some idioms you can use, but उनको तभी यूज करो जब आप उनको implement या carry कर पाओ. मतलब वो कहते हैं ना कि कपड़े वही पहनो जो आप कैरी कर पाओ. तो वर्बल ज्वेलरी भी आप उतनी बोलो कि अगर आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हो और आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, आप तभी बोलिए, राइट? देन डोंट जस्ट टॉक अबाउट योर अकम्प्लिशमेंट. नो पॉम्प एंड शो. अरे सर क्या बात कर रहे हो? जब तक हम बताएंगे नहीं उनको कि हमने क्या किया है, तो वो हमें लेंगे कैसे? अग्रीड. लेकिन यहाँ पे अगेन आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पर ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ. इट इज अबाउट यू, इट इज नॉट अबाउट मी. मेरा पॉम्प एंड शो नहीं है. मैं 2 टाइम्स TEDx स्पीकर हूँ, मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, मैं 10 साल से दे रहा हूँ. अरे भाई अपने बारे में बोलना बंद कर, हमें बता क्या दे रहा है. You getting my point, right? So you have to tell your accomplishments, but not in a pomp and show method. आप उनको ये बताइए कि आपने प्रॉब्लम क्या सॉल्व करी है. और मैं इसका एग्जांपल दूंगा आपको अगले स्लाइड में कि जिस तरह से आप अपने बारे में बता भी सकते हैं और वो पॉम्प एंड शो भी नहीं लगेगा, और आप ये भी बता दोगे कि आपने वैल्यू दी है, राइट? एंड देन शोकेस बाय गिविंग सम ऑफ द एग्जांपल्स. ये बहुत जरूरी है यार. सिर्फ बोलना कि मैं तो प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, भाई हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? मैं तो तेरे को पहली बार ही देख रहा हूं, राइट? यू हैव टू शोकेस सम एग्जांपल्स, सम रियल एग्जांपल्स की देखो ये मेरे पास पुख्ता सबूत है इस चीज के कि मैंने ये सब चीजें करी है. यू नीड टू बैक इट अप विद एग्जांपल्स, राइट? देन फोकस ऑन टीम इज इंपॉर्टेंट. बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा यहाँ पे भी ना एक थिन लाइन है. मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि भाई टीम तो थी लेकिन टीम बकवास थी, मैं था जो था, सब कुछ मैंने किया. तो दे आर लैकिंग द टीम वर्क थिंग, राइट? वो टीम में ना ऐसा बंदा फिट नहीं होता. दूसरे लोग ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनना, जो क्या करते हैं, जिन्होंने खुद कम काम किया होता है और वो टीम का सहारा ले लेते हैं, बैसाखी की तरह टीम का सहारा ले लेते हैं और बोलते हैं कि हमने ये सब किया. उनको हमने बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती कि हम लोगों ने ये सब किया, लेकिन एक्चुअल में उस बंदे का खुद का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता है. तो दोनों ही प्रजातियों से मैं तो भली बात ही वाकिफ हूं. मेरे को तो पता है कि दोनों अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि हमने किया तो मेरे को पता है कि भाई तेरा कंट्रीब्यूशन क्या था. और अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि सब मैंने किया, तो मैं पूछता हूँ टीम का कंट्रीब्यूशन क्या था भाई. सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एज अ टीम हमने ये अचीव किया, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें से इस मॉड्यूल की थी, राइट? तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए. एंड देन डिग्री, सर्टिफिकेशंस, ट्रेनिंग कोर्सेज, सब चीजें आप करते हो, लेकिन उनकी रेलेवेंसी क्या है? अब बहुत सारे रिज्यूमेस आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ भाई ये वाली सर्टिफिकेशन क्यों करी? सर उस वक्त लगा नीड थी, कर ली. सर मेरे दोस्त भी कर रहे थे, क्लास में सारे कर रहे थे, मैंने भी कर ली. रेलेवेंसी क्या है? रेलेवेंसी क्या है वो बहुत जरूरी है, राइट? हॉबीज का रेलेवेंस कैसे करना है बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में. एंड द लास्ट वन इज किस. कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. ज्यादा एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है. अगले स्लाइड में या उससे अगले स्लाइड में हम जब बात करेंगे कि आपने अपना इंट्रोडक्शन का पिच कैसे प्रिपेयर करना है. इट्स अ मेयर 120 सेकेंड पिच. कितना सेकेंड? 120 सेकेंड. वो जो मैं आपको पिच दूंगा, जो आपको अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की है. 120 सेकेंड, दैट्स इट. उससे ऊपर नहीं है, ठीक है? एंड you'll see that how effective it is. Okay, now before talking about the pitches,
या इंट्रोडक्शन, how many of you want the interviews to remember you and how many of you want to leave a lasting impression on the interviews? Just write I. कितने लोग चाहते हैं कि इंटरव्यूज उनको रिमेंबर करें? Yep, very nice. Okay, now that takes me to the next question, which says how many of you remember these pictures? ये इनके साथ रिलेटेड मतलब आपको ये देख के याद आता है कुछ? थर्स्टी क्रो याद आता है, हेयर एंड टॉर्टोइज याद आता है, ग्रीडी डॉग याद आता है, राइट? और ये सब चीजें आपने कब पढ़ी थी? अपने किंडरगार्टन में, वो पता नहीं कितने साल पहले, राइट? और अगर मैं आपसे 10th का कोई सवाल पूछ लूं, आपको नहीं समझ में आएगा या आपको नहीं याद आएगा, बट आपको ये सब चीजें याद आ जाएंगी, ये सारी की सारी चीजें याद आ जाएंगी। क्यों? बिकॉज दे वर टोल्ड यू इन फॉर्म ऑफ स्टोरीज। इन फॉर्म ऑफ व्हाट? स्टोरीज। तो आपको भी यही करना है, आपको इंटरव्यूअर को वहां जाके कहानियां सुनानी है। नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं झोला पकड़ के, राइट? तो आपको भी क्या करना है? आपको वहां जाके कहानियां सुनानी है। लेकिन कहानी सुनाने का तरीका क्या होगा, स्क्रिप्ट क्या होगी, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? आपने वहां पे जाके नर्वस नहीं होना है। आप तो ये बोलो भाई मैं तो इनको वैल्यू देने जा रहा हूँ और मैं तो कहानी सुनाने जा रहा हूँ इनको कि मैंने किया क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, राइट? एंड आई हैव टू एस्केप दिस यहाँ पे, सॉरी, share screen. Yep, I hope it is visible. Just write yes in the chat box. Okay, all right, so see, अब ये जो पूरी इंट्रोडक्शन है ना यार, ये आपकी पिच है, ये आपकी इंट्रोडक्शन पिच है, ये आपकी इंट्रोडक्शन है और इसको एक कहानी की तरह बोलना है। और ध्यान देना कि कहानी में क्या बोलना है, राइट? और ये सारी की सारी पिच आपको लंबी लग रही होगी, बड़ी लग रही होगी, बट ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की है, 120 सेकेंड्स की है, उससे ऊपर नहीं है ये, राइट? ध्यान से सुनना। और इसके अंदर अगर आपको लगे कि यार ये मेरी स्किल के साथ मैच नहीं कर रहा, उसको हटा के अपना स्किल डाल दो एंड यू विल सी कि यस इट वर्क्स fantastically well. I've shared the same script with more than 1,000 students, more than 1,000 students, और उन लोगों ने, और सेम स्क्रिप्ट सबके लिए काम करती है क्योंकि उन्होंने बीच में इसको हटा के अपनी कस्टमाइज स्किल्स डाल रही है। ध्यान देना, सपोज करिए कि मैं एक एमबीए मार्केटिंग का स्टूडेंट हूं, एमबीए मार्केटिंग का स्टूडेंट हूं मैं, सपोज, ठीक है? और मैं अपनी इंट्रोडक्शन किस तरह से दूंगा, ध्यान देना, ठीक है? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज भौमिक, a recent MBA with majors in marketing. A recent MBA with majors in marketing. I'm a solution and outcome oriented individual who enjoys working in a team in collaboration. I'm a big fan of Philip Kotler and really go by his teachings. अब इस पैरा में मैंने क्या बोला कि मैं एक आउटकम ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बंदा हूं, मैं टीम में काम करता हूं। मैंने 3 चीजें बोल दी, लेकिन मैंने इनका अभी कुछ सबूत नहीं दिया, राइट? मैंने सिर्फ बोला है। अभी तक इंटरव्यू क्या, हाँ ठीक है यार बोल रहा है, अभी उसके दिमाग में ये चल रहा है, ठीक है? नाउ अब देखिए नेक्स्ट पैरा में मैं किस तरह से बताता हूं। आई एम पर्टिकुलरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग। मैं बता रहा हूं कि मैं हूं तो मार्केटिंग का बंदा, लेकिन मैं इंक्लाइंड किस में हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग में इंक्लाइंड हूं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग क्यों? विच आई इवेंचुअली डिस्कवर्ड इन माई रीसेंट इंटर्नशिप। भाई मेरा, क्योंकि मेरा दोस्त जो है वो भी डिजिटल कर रहा था, इसलिए मैंने नहीं किया डिजिटल। मैं डिजिटल में इंक्लाइंड इसलिए हूं क्योंकि इस चीज को मैंने खुद डिस्कवर किया है अपनी रीसेंट इंटर्नशिप में, which I did with XYZ company, and I was successfully able to run campaign, digital campaign for ABCD product, generating XYZ leads, solving the big problem of the company. तो मैंने उनको बता दिया कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग मेरा निश है, इसलिए क्योंकि इसको मैंने खुद ही डिस्कवर किया है, ठीक है? और डिस्कवर कब किया? जब मैं सक्सेसफुली ये कैंपेन रन कर पाया, मेरे को लगा हाँ यार मैं तो ये कर सकता हूँ, राइट? और along with this campaign I was also involved in the SEO of their website, which saw 200% increase in the traffic in 6 months. अब इस पैराग्राफ में ना आपको थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा कि आपने अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट में क्या किया है, उस चीज को आप इस पैराग्राफ में डाल सकते हैं। Now next, now sir, that didn't stop here. I have enrolled myself in self learning and considering the amount of potential digital marketing has, looking at the global data, this is certainly to be a place looking forward 5 years. अब यार आप ये देखो कि आपने ना इंटरव्यू के लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं छोड़ा। इंटरव्यू पूछते ना आगे, where do you see yourself 5 years down the line, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि where do you see yourself 5 years down the line. इंटरव्यूअर आपसे पूछता आर यू सेल्फ लर्नर, आप बोलोगे यस, आपने इसके अंदर ही बता दिया कि भाई देख मैं तो सेल्फ लर्नर हूं, मैंने तो पाइथन में या इस कोर्स में एनरोल ही कर लिया खुद को। और क्यों किया है? क्योंकि मैंने ग्लोबल ट्रेंड्स देखे हैं, आई एम अवेयर ऑफ द इंडस्ट्री ट्रेंड्स,
आप देख रहे हो, आप एक स्टेल्थ मोड में, एक स्टेल्थ मोड होता है कि जो चीज दिखती नहीं है, आप बिना बताए ये सब चीजें बोल रहे हो, उसको बता रहे हो कि मैं सेल्फ लर्नर भी हूं, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर भी हूं, मेरे पास विजन भी है, मैं अगले 5 साल का देख पा रहा हूं और मेरे को इंडस्ट्री ट्रेंड्स भी पता है। आपने कहीं पे भी इन लाइनों का यूज नहीं किया, लेकिन ये बोलने से आपको पता चल गया, आपने उनको बता दिया, राइट? एंड देन बिफोर दैट आई वाज इन्वॉल्वड एक्टिवली इन माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट व्हिच वाज this, wherein we solved a problem of this, wherein I was responsible of this module and its integration with all the modules which team was working on. अब यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल दिया कि भाई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में टीम ने तो काम किया, टीम ने तो 10 मॉड्यूल्स पे काम किया, लेकिन उसमें से इस मॉड्यूल को मैंने लिया था। तो आपने टीम वर्क भी दिखा दिया, आपने इंडिविजुअल भी दिखा दिया, राइट? उसके बाद आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड अ बूट कैंप कोर्स ऑन पाइथन एंड द रैशनल बिहाइंड learning Python was I want to go deep in the behavioral algorithms and to build an engine जो कस्टमर के बारे में समझता है, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। आप अगर बीबीए के कंटेक्स्ट में बात करें, बीसीए के कंटेक्स्ट में बात करें, आप कुछ एक फाइनेंस का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको कैपिटल मार्केट्स में इंटरेस्ट है आप वहां कर सकते हैं। आपको एक्सेल में अगर इंटरेस्ट है तो आप एक्सेल का बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, फिर मैक्रोस, फिर बीबीए के साथ यूज करके यू कैन बिल्ड दोस थिंग्स एंड यू कैन टेल। हर चीज का ना रैशनल होना चाहिए पीछे कि आपने ये क्यों किया। Now see the next thing. I also got an opportunity to represent my college in annual university meet, which gave me a platform to hone my public speaking skills. कितनी बारी ऐसा होता है रिज्यूमेस में लिखा होता है भाई मैं तो अपने कॉलेज में इवेंट्स कराता हूँ जी, ये कराता हूँ। अरे ठीक है भाई, कराता है। It is not what you speak, it is how you speak. राइट? आपने ये बोला कि एक बंदा बोल रहा है कि मैं तो अपने कॉलेज में इवेंट्स कराता हूँ जी, एनुअल यूनिवर्सिटी मीट होता है ना वो करवाता हूँ मैं, और एक बंदा बोल रहा है इस तरह से I also got an opportunity to represent my college in annual university meet, which gave me a platform to hone my public speaking skills. आप खुद देखो यार कि किस इंडिविजुअल को एडवांटेज मिलेगा। मेरे को मिलेगा जो मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, या उसको मिलेगा जो सिर्फ ये बोल रहा है कि भाई यू नो मैं तो कॉलेज के मीट्स कराता हूँ, मैं तो फेस्ट ऑर्गेनाइज कराता हूँ, मैं तो ये कराता हूँ, मैं तो वो कराता हूँ। सो यू अंडरस्टैंड हाउ यू एक्चुअली इंटरैक्ट, राइट? देन लास्ट आपने क्या बोला? आई लव सिंगिंग। ध्यान से सुनना, एक बंदा ऐसे बोल रहा है सर मेरी तो हॉबीज है सिंगिंग और म्यूजिक, ठीक है हो गया। एक बंदा ऐसा बोल रहा है सर आई लव सिंगिंग एंड आई एम अ पार्ट ऑफ अ लोकल कम्युनिटी ऑफ सिंगर्स who keeps on organizing these events. It keeps me alive and gives me an opportunity to network with other folks. अब यहाँ पे भी आप खेल गए बढ़िया तरीके से। आपने बोला कि हाँ तो मेरे को नेटवर्किंग, तो आप यहाँ मेरे को नेटवर्किंग पसंद है तो मैं अपनी हॉबी को लेवरेज करता हूँ नेटवर्किंग के लिए। सर दैट वाज अबाउट मी। आई एम ऑल ईयर्स टू योर क्वेश्चंस नाउ। नाउ टेल मी, इस छोटी सी इंट्रोडक्शन में, मैं इसको छोटा ही कह रहा हूँ, ये 2 मिनट का है क्योंकि मैंने रीड अलाउड किया और इसको समझाया भी, इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, बट इसके अंदर मेरे आंसर्स ने क्या कन्वे किया? ये कन्वे किया कि भाई आई एम क्लियर ऑफ माय निश। मेरे को पता है कि मैं मार्केटिंग का बंदा हूं, लेकिन मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में जाना है। आपके केस में मैं बीबीए का हूं, लेकिन मेरे को एमबीए में जाना है, और कौन सी फील्ड में एमबीए में जाना है मेरे को पता है, राइट? हो सकता है कि मैं टेक्नोलॉजिकली मैं अच्छा हूं, तो मैं हो सकता है कि आईटी में, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में एमबीए करूं, राइट? मैं मार्केटिंग में अच्छा हूं, मैं एमबीए इन मार्केटिंग करूं। मेरे को अपनी निश क्लियर है भाई। सेकंड, आई एम अवेयर ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड्स, तभी मैंने बोला कि दिस इज द प्लेस टू बी इन नेक्स्ट 5 years. आई एम अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, मैंने प्रूफ कर दिया। आई एम अ टीम वर्क एंड अ कोलैबोरेटर, मैंने बिल्कुल प्रूफ किया। आई एम अ सेल्फ लर्नर, यस आई प्रूव। आई हैव अ विजन फॉर माय सेल्फ, मैंने इन सब चीजों को कन्वे कर दिया। नाउ टेल मी, अगर आप सपोज करिए आप 2 मिनट के लिए इंटरव्यूअर की जगह पे बैठ गए और आपको एक ऐसा कैंडिडेट मिलता है जो ये सारी की सारी चीजें डिस्प्ले कर रहा है, तो क्या आप उसको लेंगे या नहीं लेंगे? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, विल यू हायर दैट गाय और नॉट? यस और नो? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स गाइस कि अगर आप इंटरव्यूअर और इफ यू कम अक्रॉस अ पर्सन हु इज लाइक दिस, जिसने अपने इंट्रोडक्शन में ही गेम खेल दी सारी की सारी, राइट? एंड अगेन आई एम जस्ट पुटिंग अप अ डिस्क्लेमर गाइस, नो फजिंग हियर, कुछ झूठ नहीं बोलना प्लीज, क्योंकि वो पकड़ा जाता है, ठीक है? और ये वही स्लाइड है जो हमने अभी बात करी थी, मैच द फॉलोइंग वाली, है ना? यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे आप, तो आप ये देखिए ग्रीन में ये सारी की सारी 6 में से 5 चीजें मैंने कवर करी। मैंने कॉम्पिटिटर के बारे में कुछ कवर नहीं किया अभी, मैंने सिर्फ 5 चीजें कवर करी है। एंड सी हाउ इफेक्टिव माय इंट्रोडक्शन वाज, राइट? सो दिस इज हाउ you can actually nail your interview right in the introduction itself. उसके बाद ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। why do you want to work for us? वो ये पूछेंगे नहीं why do you want to, भाई तू आजा, you please come,
आप आ जाइए हमारे पास, क्योंकि हमें ऐसा आपके जैसे बंदे की जरूरत है जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, विजन है, सेल्फ लर्नर है, बढ़िया बंदा है। व्हाट इज योर रेलेवेंट एक्सपीरियंस, आप ऑलरेडी बता चुके हो। और रेलेवेंसी की जब बात आती है ना, ध्यान सुनिएगा, रेलेवेंसी की बात आती है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस आप तभी बता पाएंगे जब आपने कंपनी के बारे में रिसर्च किया होगा। व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर अस भी आप तभी बता पाएंगे जब आपने कंपनी के बारे में रिसर्च किया हो, क्योंकि आपको वो सब चीजें पता है। आप बोल दोगे देखो जी आपकी कंपनी में ये सब चीजें हैं, मेरा ये स्किल सेट है, यहाँ पे इनकी मैरिज होती है, खत्म बात। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, अगेन आई एम अ सेल्फ लर्नर, मेरी विजन है, सब कुछ तो बता दिया, और क्या चाहिए आपको। वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years down the line, you've already told in introduction. Tell us about a challenge you faced and how did you overcome. ये बहुत ही प्यारा मौका होता है आपके पास कोई एक और अपनी स्ट्रेंथ बताने का, right? I personally, when I give interview, I always keep at least 10 different situations handy जिसको मैंने सॉल्व किया है अपने 15 साल के करियर में, राइट? कम से कम 10 मैं रखता हूं, और हर एक सिचुएशन के अंदर से कोई ना कोई एक मेरा एट्रीब्यूट निकल के आता है, राइट? आपके केस में जरूरी नहीं है कि आपको एक प्रोफेशनल एग्जाम्पल या प्रोफेशनल चैलेंज ही देना है। आज की डेट में इफ यू कैन ऑल्सो टेल द इंटरव्यूअर दैट हाउ मेंटली टफ यू आर, दैट विल एक्चुअली गो इन योर फेवर। आप सपोज करिए फ्रेशर है, आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट पर्सनल लाइफ में सपोज करिए कुछ ऐसा हो गया आपके साथ जिसमें आपने मेंटल ग्रिट दिखाई, मेंटल करेज दिखाया, मेंटल स्ट्रेंथ दिखाई, टॉक अबाउट इट। बोलो आई एम वेरी मेंटली टफ गाय सर, मैं सिचुएशन से इतना जल्दी हारता नहीं हूँ, हार मानने वाला नहीं हूँ। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है जो लोग देखते हैं। आप ये स्टार्ट कर सकते हो कि सर प्रोफेशनली तो अभी कोई चैलेंज नहीं आया है, क्योंकि प्रोफेशनल तो अभी हम लोग वर्ल्ड में एंटर नहीं करे हैं, बट हाँ एक कॉलेज फाइनल ईयर में एक चैलेंज आया था, उसके बारे में बोल सकते हैं। अगर वो भी नहीं आया तो आप ये बोल सकते हो कि सर मेरी पर्सनल लाइफ में ये एक आया था और उसको मैंने इस तरह से ग्रिड से सॉल्व किया। दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू सी आपका थॉट प्रोसेस क्या है, राइट? एंड देन लास्ट में वो आपसे पूछेंगे कि एनी क्वेश्चंस फॉर अस, एक या दो क्वेश्चन तैयार रखो अपने कि भाई अगर इफ आई एम सिलेक्टेड व्हाट डू यू थिंक कि कुछ फर्दर स्किल्स है जिसपे मेरे को अपने आप को होन करना चाहिए, व्हिच विल बी हेल्पिंग मी इन द अपकमिंग जॉब व्हिच आई विल बी टेकिंग अप। ठीक है, इस तरह से दो तीन क्वेश्चंस आपको तैयार जरूर रखने हैं। नाउ अ प्रो टिप, जैसा कि अभिषेक ने शुरुआत में बताया था, रिमेंबर कॉन्फिडेंस वाला, सेल्फ अवेयरनेस, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज एंड लास्ट था एक्सपीरियंस। प्रो टिप, ये चीज मैं भी करता था 2010 में, ओके? मैं क्या करता था कि सी आई एम फ्रॉम दिल्ली, ओके, एंड आई डिडंट वांट टू मूव टू हैदराबाद, और क्योंकि मैं हैदराबाद में काम करके आ चुका था वापस, मेरे को घर पे ही रहना था, दिल्ली में ही रहना था, दैट वाज माय पर्सनल प्रेफरेंस। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैं थोड़ा सा धीरे बोलूंगा ताकि किसी को सुनाई ना दे, दीवारों के भी कान होते हैं, राइट? तो मैंने क्या किया था कि मैं हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर में जो भी मेरे प्रोफाइल की ओपनिंग्स थी ना, मैं वहां पे अप्लाई कर देता था, एंड आई गेव अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज। मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मेरे को पता चल जाता था कि इंटरव्यूअर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, एंड दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू मोल्ड द इंटरव्यू। मैं नाउ उसके बाद ये एक स्टेट ऐसी आ गई कि आई वाज एबल टू मोल्ड द इंटरव्यू इन द डायरेक्शन आई वांटेड। मतलब कि इंटरव्यू कौन ड्राइव कर रहा होता था? मैं ही ड्राइव कर रहा होता था। मैं वहां पे इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ड्राइव भी मैं ही कर रहा हूँ। कैसे? मैं ऐसे कीवर्ड्स बोल देता था जो मेरे को पता था कि आगे इंटरव्यूअर पूछेगा इसके बारे में, तो आई वाज एबल टू ड्राइव माय इंटरव्यू। और ये सब चीजें कहां से आई? एक्सपीरियंस से आई। सो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, अप्लाई फॉर द जॉब्स which you know that you won't be applying. I know ethically थोड़ा सा गलत है, बट अगेन आपको प्रैक्टिस करने का मौका कहां से मिलेगा, राइट? द सेम वे आई इंप्रूव माय इंग्लिश बैक देन, राइट? वो कॉल सेंटर्स होते थे, मैं वोडाफोन वगैरह के कॉल सेंटर पे घंटों लगा रहता था इंग्लिश में बात करने, दैट्स हाउ आई इंप्रूव माय इंग्लिश, राइट? सो ये सब चीजें करनी पड़ती। सो I think that's pretty much it from my side, and I'll now let Abhishek do a talking about the group discussion. And I hope you got the value out of this session till now. And now we'll be talking about the group discussions. Abhishek, over to you. Awesome. Thank you, Bhomick, for that. So, guys, first of all, आप लोग को अभी भौमिक ने बहुत सारी चीजें बताई हैं रिगार्डिंग योर सीवीज, तो अपने सीवीज को थोड़ा सा क्लियर करके चीजें करेंगे। अब जो नेक्स्ट 5 से 10 मिनट हम बात करने वाले हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट टू मेजर थिंग्स। वन इज योर ग्रुप डिस्कशन। आप ग्रुप डिस्कशंस होते हैं तो वहां पर अपने आइडियाज, थॉट्स और चीजों को कैसे रख सकते हैं, एंड ऑल्सो सम थिंग्स अबाउट वन ऑन वन डिस्कशन, राइट? सो इफ यू आर हियर विद मी, लेट मी सी अगर अभी तक वो ऑसम, स्माइलिंग,
stunning log hai. So if you are here with me, please put down your name in the comment with your adjective. No, don't. Okay, just put down your name. Let us see who puts it with with their adjective. Put down your name. Let me see what your name is in the comment box. Okay, we have Pretty Prerna. Okay, that's amazing. Marvelous Mridul. Blissful Bhagyashri. Okay. Radiant Rahil. That's amazing. Bhagyashri. Strong Sharavi. Shining Shubham. Vice Venkatesh is here. Okay, that's amazing. So that's super awesome. So अभी भी वो awesomeness, happiness, strong and fearless लोग हैं हमारे पास यहाँ पे, and I think that's fabulous. I'm very happy across with this. Great. कभी भी introduction में डालो या कहीं भी डालो ना, please try to put it across. That ways it would be super interesting. Like Janvi said that she is joyful Janvi, and I think that's fabulous. That's amazing. Okay, awesome. So we'll be talking about group discussion now. कि group discussion में क्या goal है, क्या चीजें हैं जो मतलब चीजें कैसे होती हैं, how what is the expectation, what the person is judging, how you have to be there. ठीक है ना, जो डर लगता है उसको एक्साइटमेंट में कन्वर्ट कैसे करें, नर्वस एनर्जी को कैसे कंट्रोल करें इन अ ग्रुप से. ओके, सो आर यू रेडी? या प्लीज पुट इन द कमेंट्स इफ यू आर रेडी. Okay, awesome. So a lot of people are thinking, yes. Okay, let's take it across then. So I think the first thing that goes across in a group discussion, जब हम एक ओवरऑल के अंदर बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि यार वो उसकी सेटिंग क्या है. ठीक है. तो अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें, जैसे कि अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वील बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट थिंग दैट इज उस ग्रुप सेटिंग में प्रोग्राम क्या है, कि मतलब ओवरऑल उसका क्राउड का सिस्टम क्या है, कि वहां पर एक टॉपिक है, वहां पे लोग है, क्या सेटिंग है. कई बार वो डिफेंस के लिए होता है, तो कई बार वो कॉर्पोरेट में होता है इंटरव्यू. लेकिन ये अलग अलग चीजें हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि वो सेटिंग कैसी है, टॉपिक क्या है, क्या लोग है. ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक पर्टिकुलरली, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझना कि व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन्स. I'll give you a very simple example. If the topic for the discussion is, should smoking be banned? So before even starting, you should understand कि smoking should be banned. So इसका मतलब क्या है? इसका फिर उसके बाद जब आप सोचते हो, when you're thinking about it, so what does smoking do? How does it has come into the origin? Maybe your personal stories, how many people are affected? How many people have lost their lives in your network या something of that sort. So इस टाइप के बारे में सोच के उसके बारे में समझोगे, तब आप डिस्कशन के अंदर घुसोगे, तो you will be able to take it across in a very nice way. Okay, so we are talking about first thing, which is understanding the topic. Okay, the second thing that comes, that कोई भी डिस्कशन के स्टार्टिंग में होती है, which is the start, right? विच इज द स्टार्ट ऑफ द थिंग, कि जब आप उसको स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसको डिफाइन करो कि आप किस साइड में उसको बोलना चाहते हो. जब आप स्टार्ट ले रहे हो तो प्लीज पिक अप कि आप ए साइड पे हो या बी साइड पे. शुड स्मोकिंग बी बैंड? यस इट शुड बी बैंड. नो इट शुड नॉट बी बैंड. टिपिकली जो क्वेश्चंस या फिर जो डिस्कशंस होते हैं वो टू साइडेड होते हैं, टू डिवाइड पीपल इनटू मल्टीपल एरियाज. लोगों को वो पसंद आते हैं जो थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि ये भी सही है ये भी सही है, ऐसे करेंगे तो मजा नहीं आएगा. टेक अप अ साइड and then prove it that why it is right. Okay, then third comes is the opening bit, right? जब आप open करते हो तो ऐसा होता है कि the person who makes the first shot उसका एक brownie point हो जाता है, जो सबसे पहले बोलता है in the whole thing. तो point is कि कोशिश करो अगर आप पहले बोल सकते हो तो I think that's amazing. और अब कैसे बोलना है वो मैं बता देता हूँ. इन केस नहीं मिस हो जाता है तो देन फाइंड अदर प्लेसेस, लेकिन जो बंदा पहले बोल देता है वो अच्छा होता है. तो अब इसमें पहले बोलने की टेक्निक ये है कि अगर आप सीधा ही शुरू कर दो, आई थिंक दिस इज द समथिंग दैट वी शुड डू, एंड सब लोग बोलने जाएंगे और आपको कोई पूरा करने नहीं देगा, तो आपका इम्पैक्ट तो कट गया ना. सो व्हाट यू कैन डू देयर इज दैट you can start with, first of all, I thank the person, I thank the interviewer, I thank the GD moderator for giving us this topic. And the topic is, should smoking be banned? And I think smoking is a deadly evil, and it should be super banned.
इस टाइप का कुछ मतलब शुरू में आपने बोल दिया ना, एंड देन कीप इट ओपन फॉर पीपल टू कम इन, एंड वो पिच कर रहे हैं अपना, लेकिन आप पहले बोल के फिर शांत हो जाओ. सो दैट वेज इट वुड बी सुपर इंटरेस्टिंग. सेकेंड थिंग जो आप इसी के अंदर पैरेलली कर सकते हो, वो आप कर सकते हो बेसिकली समराइज. ठीक है, तो आप समरी बेसिकली कर सकते हो अलग अलग पॉइंट्स की, अलग अलग टाइप के. पॉइंट क्या होता है कि जैसे हम लोग डिस्कशन करते हैं, कई बार आपने मेरे सेशन में, अभी हमारे सेशन में भी देखा होगा, मैं बीच बीच में कुछ कुछ समराइज कर देता हूँ कि भाई भौमिक ने आपको ये चीजें बताई हैं, अब आगे हम ये चीजें सुनने वाले हैं या समथिंग. तो उससे यूजफुल हो जाता है ना, मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है ना कि अभी कहाँ चल रही है नैया हमारी. समथिंग सिमिलर आप ग्रुप डिस्कशन में भी कुछ अच्छे पॉइंट्स आए तो फिर उसको पिक करो, कि आई थिंक जो राकेश ने कहा है, जो प्रेरणा ने कहा है, जो साहिल ने कहा है, उसने ये कहा और आई थिंक ये सही चीज है, तो आई थिंक दैट इज राइट. तो ये आप बेसिकली समरी करते रहो तो आपका असर्टिवनेस आ जाएगा. ओके. सो एक और जो ओवरऑल होता है वो होता है आई कांटेक्ट के बारे में. हम लोग कई बार जो देखा है मैंने जनरल, थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस होता है लोगों में या समथिंग, तो क्या करते हैं ना, वो ऐसे ऊपर देख के बोल रहे थे, सो दिस इज समथिंग दैट आई शुड डू, एंड ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं. ऐसे नहीं करना. आप एक बंदे को देखो जो शायद आपके अगेंस्ट है, आपके फॉर है. आपके फॉर वालों को देखोगे तो आसान लगेगा, क्योंकि आपकी कोई बात कह रहा है तो उसको कॉन्फिडेंट हो या करना है, तो उसके बताना यस इट इज ट्रू, और अपनी कोई स्टोरी बता दो, अपनी कोई चीजें बता दो, पर उनकी आंखों में देख. प्लस थोड़ा सा जो जो इंटरव्यूअर है या समथिंग, कभी 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 आप उसकी भी आंखों में देख सकते हो, अगर वो आपके बीच में बैठा है. अगर वो आपसे कहीं कोने में बैठा है, कहीं दूर, मतलब वो अपना पीछे से ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो ऐसे ऐसे मुड़ के नहीं कि अरे सर ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं करना. ठीक है. तो ये हो गया अपना आई कांटेक्ट वाला बिट. एक और एस्पेक्ट जो आता है वो बेसिकली आता है आपके एरियाज जहां पर आपको पिच करना है. पिच करना है मतलब कि एक ऐसा सिनेरियो होता है कि सब पॉज हो गए, सब शांत हो गए, सबने बोल लिया खच 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 खच, लेकिन अब शांत हो गए. या फिर एक ऐसा एरिया आ गया जब आप उस भीड़ के अंदर से अपना आंसर निकालना चाहते हो. राइट. तो जब एक बार पिच, जब आप बेसिकली जब सुर गिरता है तब आप उठा सकते हो ना अगर, तो आपका एक ब्राउनी पॉइंट सुपर ऐड हो जाता है. तो क्योंकि जब आपने क्या किया, आप उसको डेड से उस कॉन्वर्सेशन को उठा के लिया. ठीक है ना. इसमें आप दो चीजें कर सकते हो. एक तो अगर आपके पास फ्रेश आइडियाज हैं तो यू कैन टेक अप द फ्रेश आइडियाज और आप उन पे बात कर सकते हो. सेकेंड, अगर आपके पास फ्रेश आइडियाज नहीं है या समथिंग, पर आपको यू वांट टू टेक दिस ब्राउनी पॉइंट विच इज अवेलेबल, सो फिर से आप समरी के ऊपर जा सकते हो. ठीक है ना. जस्ट समराइज की आई थिंक दैट्स अमेजिंग. सो आई थिंक हमारे पास चार लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं करना चाहिए और दो लोग हैं जो करना चाहिए. एंड बहुत पावरफुल कहा आपने, क्योंकि आपने ये कहा, क्योंकि क्या एट द एंड ऑफ द डे ग्रुप डिस्कशन में आप हो, लेकिन आप अपने लिए हो वहां पे. ठीक है ना. सो औरों को साथ लेके, लेकिन अपने आप को लोगे, तो अगर उनको तीन लोग सेलेक्ट करने, चार लोग सेलेक्ट करने, तो पक्का से आपका नाम जरूर होगा. ठीक है. अगर आपको किसी अपोजिशन बंदे की बात काटनी है तो आप उसमें उसके साथ एग्री हो जाओ पहले. ठीक है ना. जैसे कोई बोलता है कि स्मोकिंग इससे यार मुझे बहुत सारा रेवेन्यू आता है, बहुत सारे लोग को रोजगार मिलता है, यू नो ऑल ऑफ दैट. सो एंड यू वांट टू कट हिम, दैट्स अमेजिंग साहिल, आई एग्री विद यू. ठीक है ना. तो उसके दिमाग में क्या आएगा, अबे ये तो एग्री करता है, मतलब अब मैं इसको अपोज कैसे करूं. तो आई एग्री विद यू, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, कि यार इतने सारे रोजगार मिल रहा है, इतने सारे लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं, इतने सारे ये भी हो रहे हैं, बट क्या पैसा जिंदगी से ज्यादा जरूरी है. आपको पता है हर सेकंड पांच लोग मर रहे हैं, एंड दैट इज सैड. और वो कोई भी पैसा, कोई भी फैमिली, कोई भी चीज उस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकती. एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग इज स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ या टाइप्स में. तो आपने क्या किया, आपने एग्री किया और फिर आपने उसको क्या तो काउंटर कर दिया या सपोर्ट कर दिया अपने पॉइंट से. सो दैट इज द थिंग. लास्ट में आप एंड करोगे, उसको एंड करते ही समय समराइज करने की कोशिश करो, कि यार लास्ट में एक बार आप समरी करके उनको बता दो. ये अच्छा और एक ब्राउनी पॉइंट होता है जहां पर ऑल्दो वो जो जो इंटरव्यूअर है वो ऑलरेडी आपका शुरू के अगर 10 मिनट आपके उसमें पिचिंग है, तो आपके पास 6-7 मिनट में, 8 मिनट में वो बना चुका है ऑल दो डिसीजन. फिर भी आप एंड में थोड़ा समराइज कर दो तो वो थोड़ा इट वुड बी गुड टू हैव. ठीक है. अगर उससे डाउट है तो वो गुड टू हैव में इसको डाल देगा. तो दिस इज अ ग्रुप डिस्कशन दैट इज देयर. ठीक है. एक वन ऑन वन डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू शेयर वन क्विक थिंग. ऐसा होता है कि भाई जैसे, मतलब यू आर देयर, यू आर डूइंग
आप भाई प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन ऐसा होता है कि मन में है ना धक 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 चलता रहता है, या फिर ऐसा होता है यार मेरी शायद बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मेरा थॉट प्रोसेस में मे बी वर्ड्स जो है मैं फिलर्स यूज करता हूँ, मैं ये सारी चीजें यूज करता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, राइट? एंड दैट इज वेयर वी स्ट्रगल अ लॉट. So there is one tool I can share with you. I'll share it across in the chat box probably. And what I want कि आप इसको try कर सकते हैं. So this is a tool which is called You Speak Now. ठीक है? So I'll just share the screen. Bhomick, can I share the screen? Okay, great. So Yeah, sure. I'll just share the screen across with you guys. So what you guys can do is that this is a very nice website. It's called You Speak um, Now के नाम से है. So what they do is that they have a very interesting thing. आप अपना एक वीडियो बनाओ और इनकी वेबसाइट पे डाल दो, ठीक है? और इनकी वेबसाइट पे देन दे गिव यू फीडबैक्स, ऑटोमेटिक फीडबैक्स आते हैं कि यार आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आपकी टोन बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये चीजों पे काम कर सकते हो, वो चीजों पे काम कर सकते हो. तो इसमें क्या होगा, विदाउट इवन गेटिंग जज्ड यू कैन यू नो जस्ट अपलोड अ वीडियो देयर, और वो उसका एआई एनालिसिस करते हैं. बेसिकली दे हैव अ एआई सिस्टम, रोबोट है उनके पास जो बेसिकली ये सब चीजें देख के आपको बताते हैं, और वो फिर आपको चीजें इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? तो आप सिंपल सा लॉग इन साइन अप करके आप अपना वीडियो एक रिकॉर्ड कीजिए, 2-3 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन वीडियो. इनफैक्ट जो भौमिक ने बताया ना आपको 120 मिनट का इंट्रोडक्शन वीडियो है, मे बी वो इंट्रोडक्शन वीडियो करके आप अपलोड कीजिए, तो आपको सारी चीजें बताएगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स ऑफ टोन, वेराइटी एंड ऑल ऑफ दैट. So who wants to do it? Who wants to try this tool? So this is very interesting that they are doing. So I just thought to share it with you guys. So I've shared the screen with you, shared the link with you. आप इसको copy कर लेना, so that you can try this out. This is a very interesting tool that these folks are doing, and that way it is just amazing. Okay, awesome. So I think I'll stop sharing, Bhomek, and um, what you can do is that you can share your screen, please. Okay, great. So I think हमने group discussions बात कर लिया है. If you have any questions, you can just put in the chats regarding the group discussions. And in the meanwhile, I'll take it across with the one-on-one discussion. ठीक है? अब one-on-one discussion का scene क्या होता है कि one-on-one discussion is more about दो लोग हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है? एंड वहां पे इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है कि कौन कौन है, क्या चीजें हो रही हैं. Mridula says that can you show the GD point slides again? Yeah, I want to take. So I'm sure that you want to take a screenshot probably. Mommy, can you do that for them so they can take a screenshot? Yeah, please take a screenshot. And we'll be moving on to one-on-one. So one-on-one discussions में ना basically क्या फंडा होता है कि दो लोग हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, समझना ये चाहते हैं कि ये बंदा कौन है, क्या वैल्यू दे सकता है मुझे, और इसका क्या इनसाइड आउट कैसा है, मतलब ये अंदर से कैसा है. इस टाइप के डिस्कशंस, वन ऑन वन डिस्कशंस के एम ये होते हैं. तो अगर आप कर सकते हो तो फर्स्ट स्टेप आपका जो फॉलो करेगा वो आप रीड करो उस बंदे के बारे में. लिंक्डइन प्रोफाइल होगा अगर उसका, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसका लिंक्डइन प्रोफाइल पढ़ो कि उसने करा क्या क्या है, चीजें क्या क्या करी है. अगर कंपनी है कोई तो कंपनी के बारे में पढ़ना है, मतलब पता होगा ना सामने वाले बंदे के बारे में, तो फिर आप 10 चीजें और बात कर सकते हो, नहीं तो आप हमेशा डरे ही रहोगे. कोई फायदा नहीं. सेकेंड कम्स इज मोर अबाउट योर इंट्रोडक्शन. अगर आपका इंट्रोडक्शन क्लासी होगा, ठीक है ना, और अगर आपने जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं उनके बारे में आपको आइडिया है, तो और कुछ ज्यादा बड़ी बात होगी ही नहीं. जैसे वन ऑन वन डिस्कशन में व्हाट यू कैन डू इज दैट गो ऑन यूट्यूब एंड जस्ट सी हाउ टू टेक इंटरव्यूज, हाउ टू गिव इंटरव्यूज नहीं, हाउ टू टेक इंटरव्यूज. सो वहां पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी वहां पे दे व्हाट दे विल बी डूइंग इज दे वुड बी टेलिंग यू कि हाउ टू जज पीपल, हाउ टू डू दैट दिस दैट. तो आपने ऑलरेडी समझ गए अगला वाला बंदा कि भाई क्या पूछता है, कैसे पूछता है, एंड दैट इज इंटरेस्टिंग. ओके, सो प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन एंड पुट अक्रॉस इन योर FAQ. बहुत सारे लोग अपना CV पढ़ के नहीं जाते. वो ऑब्जेक्टिव वाली लाइन में लिखा होता है आई वांट टू बी द amazing person in the well oiled machinery of organization which is like just amazing. अरे भैया क्या लिख रहे हो ये,
दिमाग फट जाएगा, क्या कर रहे हो? सिंपल सा लिखो ना, आई वॉन्ट टू वर्क इन द फाइनेंस फील्ड टू मेक थिंग्स अमेजिंग, या फिर ऐसा कुछ करके सिंपल भाषा में लिखो। वो रैंचो वाला चीज नहीं है जो उसमें कहता है, अरे वो भाषा लिखो जो समझ में आए, दैट इज व्हाट इट इज। तो अपना सीवी अच्छे से पढ़ो और उसको आसान भाषा में लिखो ताकि वो भी पढ़ सके, और ऐसी ऐसी रैंडम चीजें मत डालो जिसके जो तुमसे ही फंसेंगे, क्योंकि यार सिंपल सा है ना, तुमने एक रैंडम सी चीज लिख दी है, अगले वाला पूछ लेगा उसके बारे में, भैया ये क्या किया है, कोई फायदा नहीं। इनफैक्ट जाओ ऑनलाइन कोर्सेज करो, बुक्स पढ़ो और उनको डालो, तो वहां से वो ग्रेविटी आएगी आपके सीवी के अंदर। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट एक बेसिक चीज है जो ओवरऑल बहुत सारे लोग करते हैं, ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। ठीक है ना, कि यार मैं इसलिए इसलिए मैं इंटर्नशिप नहीं कर पाया क्योंकि मेरे घर पे ये था या फिर ऐसा वो था। अरे भैया, नो, डोंट फोकस ऑन आप क्या नहीं कर पाए, क्या कर पाए एंड ऑल ऑफ दैट। फोकस ऑन क्या क्वेश्चन पूछा है, उसका एक सिंपल सा आंसर क्या हो सकता है, और वहीं रुकना है। डोंट ओवर एक्सप्लेन, डोंट गो इनटू राम कहानियां एंड स्टफ, नोबडी लाइक्स दोस। सिंपल टर्म्स में सीधी सीधी बात करनी है। ठीक है, सो ये बेसिकली एक और ऑप्शन हो जाता है कि आप ओवर एक्सप्लेन नहीं करते हो। एक और एस्पेक्ट होता है जो जीडी के अंदर आता है, जो आपका जेडी होता है। जेडी अगर आपने सुना हो, जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं इसको, तो ये हमेशा एक कंपनी का ऑनलाइन पड़ा होता है कि यार ये हमें बंदा चाहिए, या फिर अगर वो नहीं दिया है उन्होंने जेडी आपको, तो आप ऑनलाइन जाइए, वैसी प्रोफाइल्स के जेडी देख लीजिए। ठीक है, तो जेडी देखोगे तो आप उसमें आपको ये पता लगेगा कि असल में क्या क्या स्किल्स वो चाह रहे हैं। क्या वो एसक्यूएल भी चाह रहे हैं, क्या वो एक्सेल भी चाह रहे हैं, क्या वो अकाउंटिंग के अंदर ये वाला टैली सॉफ्टवेयर चाह रहे हैं, या वट एवर द थिंग्स इज। तो आपको अप टू डेट होना पड़ेगा कि तब आप बेसिकली अपने जेडी को समझ पाओगे, यार ये जेडी है और ये मेरा सीवी है, और फिर उसके अंदर कुछ कोलैबोरेटिव चीजें भी डाल सकते हो। सो आई थिंक दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन यू टॉक अबाउट इट, कि अपना जेडी पढ़ो। नेक्स्ट चीज करेंगे, बट उससे पहले आप अपना जेडी पढ़ो एंड चीजों को आगे वर्कआउट करके देखो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपने किए हो, पुट देम इन द सीवी, या फिर अपने ग्रुप डिस्कशन में उनको बताओ कि यार मैंने ये चीजें वर्कआउट करी हैं, ऐसे ऐसी चीजें चीजें निकाल के लेके आया हूँ मैं, एंड ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज है, यहाँ यहाँ मैं फेल किया हूँ। तो वो बेसिकली आपको ह्यूमन बनाएगा। डरना नहीं है, सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ दुख नहीं मचाना, सिंपल जाके बात करनी है, भैया ये चल रहा है, ऐसे हो रहा है, ये कर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि भाई बहुत सारे लोगों के डर अलग ये हो जाता है कि वो क्वेश्चन सुन लेते हैं एंड देर लाइक, यार मेरे को समझ में भी नहीं आया, मैं क्या करूं अब, एंड देन दे आर लाइक, चलो कुछ भी बोल देता हूँ, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। क्यों क्यों करना है ऐसा? नहीं समझ में आया, पूछो उससे कि सर दैट्स अमेजिंग दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन बट आई एम नॉट क्लियर विद दिस टर्म। उसने पूछा कि मे बी जो कैटलिस्ट वाला क्वेश्चन था कि ओके सो व्हाट इज एन कैटलिस्ट, व्हाट इज अ कैटलिस्ट इन द फाइनेंस फील्ड, व्हाट डू यू थिंक? So you can just say that, thank you for the question. Can you help me understand what is a catalyst? Because I think I can answer this question, but catalyst is something which is a super new keyword for me. So then people will, they will, okay, catalyst is something which makes things awesome, yeah, fast, yeah, something. So then you can come up with the answer कि अच्छा, okay, that's amazing. So वो एक quality दिखाता है कि जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं पता है, आप पूछ लोगे, and that is a very good quality. ओके, सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज देयर। अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में नहीं पता है, जस्ट टेल देम दैट that's amazing, thank you for the question but I don't think I'm aware of this, so that ways you can kind of avoid it। वैसे ऐसे अवॉइड कर सकते हो कि यार थैंक यू फॉर द क्वेश्चन बट मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द थिंग, क्योंकि आप रैंडम चीजें बोलोगे, वो रैंडम चीजें कोई पकड़ लेगा और फिर मजा नहीं आएगा। तो वो उसको आप ओवर एक्सप्लेन करो ही मत। ठीक है, और लास्ट में आप इंटरव्यूअर से क्वेश्चन जरूर पूछो विच इज अराउंड देयर कंपनी कल्चर, या फिर उनकी कंपनी का कल्चर कैसे है। तो अगर वो पूछे यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, यस सर आई हैव अ क्वेश्चन, सो व्हाट इज द काइंड ऑफ कल्चर इन योर कंपनी, या फिर व्हाट इज द ग्रोथ स्टेजेस इन द कंपनी, कि भाई ग्रोथ कैसे होती है, या फिर ये पूछ सकते हो कि व्हाट इज द विजन फॉर द इंडियन ब्रांच फॉर द कंपनी, इस टाइप के थॉट्स। तो सही लगेगा कि नहीं यार ये बंदा मतलब सिर्फ बताने नहीं आया है, ये बंदा पूछने भी आया है, एंड दैट वे इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो वन ऑन वन डिस्कशन में बेसिकली रेपो बनाने वाली बात है, वो कनेक्ट बनाने वाली बात है, जहां पर लोग आपको समझेंगे कि हाँ यार ये बंदा जो है
ये जानता है चीजों को, ठीक है, इसकी ग्रेविटी है इसके अंदर, एंड दैट इज व्हाई इट मेक्स इंटरेस्टिंग. ओके, सो आई थिंक दैट इज समथिंग which is at a very core of this. ओके, इससे पहले वी टॉक अबाउट टेक अवेज. आई वांट कि क्वेश्चंस जो आपके हैं वो आप डाल सकते हो. वी हैव आई थिंक वन लास्ट थिंग दैट विल बी डिस्कसिंग, बट उससे पहले विल बी डिस्कसिंग द की टेक अवेज. बट उससे भी पहले व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप लोग को ये सेशन मतलब ओवरऑल में कैसा लगा. ठीक है, हम क्वेश्चंस लेंगे, विल बी आंसरिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम यू अभी जस्ट इन 5 minutes और सो. आपको ये सेशन कैसा लगा, प्लीज पुट इन द कमेंट्स, बिकॉज आप लोग सुबह सुबह यार सुबह सुबह संडे को कौन उठता है सेशन अटेंड करने के लिए. बट a lot of you found it amazing. Okay, that's great. Okay, great. So what you can do is that Rashi, if you can quickly share a feedback form with them. So it's a very simple form. दो तीन questions हैं. You can fill that, and in the meanwhile, you can think about all the questions you have. ठीक है, and that ways it would be amazing. ठीक है. Hello. All right. So Rashi, please share that thing with us. Mute कीजिए अपने आप को. And unexpected and awesome. Shubham says unexpected and awesome. Okay, great. So I think the feedback form is here. We are putting it down. So what you can do is that go quickly fill this feedback form, and फिर उसके बाद we are just 15 minutes away from ending this whole session. हम लोग की takeaways पे बात करेंगे, हम लोग फीडबैक्स पे बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे आपके क्वेश्चंस पे, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, प्लस जो जो मतलब हमारे पास एक ई बुक है दैट विल बी सेंडिंग यू अक्रॉस फॉर द ईमेल्स जो जो हमें फीडबैक्स में मिलेंगे. सो विल बी सेंडिंग अ ई बुक जो थोड़ा चीट शीट के जैसे है, विच वुड बी इंटरेस्टिंग. Okay, so please go fill this feedback form, and once you have filled the feedback form, abhi I think where there are 60 people in the participants. I want 60 feedbacks uh, where you can go and fill this form, so that it would be amazing to know कि यार feedback हुआ क्या क्या अच्छा लगा आप लोगों को at the end of the day. ठीक है. और आई थिंक अगर अगर हर एक इंसान एक या दो की टेक अवेज भी यहाँ पे बोल सके तो आई थिंक दैट विल बी अ बिग विन फॉर मी, बिग विन फॉर अस. Yeah. I think that would be great. So let's do this. जो लोग feedback fill करके आ गए हैं, they are back in the session. Just type done in the comment box. I think Vinayak wants to speak for the 2 minutes in the end of the session. Yeah, don't worry. Sorry, Venkatesh. So I agree on that. I'll give you the dice for that. Guys, please fill the feedback form and come back for key takeaways and questions. जिसके बारे में बात करेंगे. And then in the next 15 minutes, the session will be over. Okay, please type done once done. तो हमने थोड़ा सा फॉर्म में 4-5 क्वेश्चन डाले हैं, so that will be same. Prerna says that it was amazing whatever you and Bhomick sir explained. It was highly insightful. I'm confident enough that all I learned today from you guys is really making me a better public speaker. I think that's amazing. Thank you, Prerna, for those kind words. Thank you, Prerna. Great. So I think I can see a couple of people who have messaged done. Okay, guys, once you are done, you can just type done in the comment box. Acha, Bhomick, one more thing I have a question for you is that so since these folks have got a lot of value out of um, the session, I'm sure that they are very ambitious about their future, and so are we. So what do you think, like what other things that they should work on their personality or their things to make it awesome? No, I think this is just the start, right, Abhishek? As I told that, so once they clear the interview, they go into the job. There also that public speaking and presentation skills are required, right? And it is something which is a lifelong thing. Even I, after 15 years of experience, I still need those presentation skills, those public speaking skills. So this is something which is a continuous process.
they must hone themselves on the public speaking, and public speaking is one thing which will not come via reading some books, right? Okay. It's just like swimming. जब तक आप पानी में डूबोगे नहीं, पानी में छलांग नहीं मारोगे, आपको स्विमिंग नहीं आएगी. So similarly, I think this would require a lot of practice around public speaking, right? So एक चीज जो मैं इनको बोलना चाहूंगा, आप सबको बोलना चाहूंगा कि public speaking की practice जरूर करिए. Right, and if you don't have a platform, I think we do have a platform at 10,000 speakers wherein you can come in and join that particular practice talks. That is something you can do. You can make your videos, you can and you know, you any which case you have any issues, you can reach out to us. I and Abhishek would be sharing our signatures, sharing our coordinates in the next slide, so you guys can reach out to us. And one more thing is that you know, LinkedIn के ऊपर अपना प्रोफाइल बढ़िया से बनाइए. मतलब you can see my profile. I have two profiles on LinkedIn. One is of the mindset coach, the public speaking coaching what I do, and second is for the, you know, that entire 15 years of experience I have. So I have two profiles. Just have a look at it, how I have articulated things and how I have you know, done that. So just do that in the similar manner, and keep posting on LinkedIn. That's really important. Yes, I think that's fabulous. Thank you, Bhomick, for that. So guys, think about your questions. What questions you have? I can see a lot of done. So a couple of you are still filling. Some of you have already done it. So I think that's fabulous. And you know, 10,000 speakers में हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं. So we are majorly out speaking, but we invite coaches like Bhomick to, you know, add value to help people become awesome. And that way is amazing. So अगर इसको ही थोड़ा सा और elaborate करना है, इसी प्रोग्राम को थोड़ा और बड़ा करना है, 5 दिन का एक प्रोग्राम रखना है, so you can contact to your coordinator. I think um, we have somebody, Venkatesh. It is yes, Venkatesh it is. So you can contact to Venkatesh. आप लोग बात करिए in case कोई और you know, opportunity रखनी है, या फिर इसी को थोड़ा और elaborate करना है, where you know, हर बच्चे के इंट्रोडक्शन के ऊपर काम होगा, हर प्रैक्टिसेस होंगी और ग्रुप डिस्कशंस भी हो सकते हैं जो ओवरऑल में होगा. सो दैट कुड बी इंटरेस्टिंग. तो अगर इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड और बहुत सारे लोग अवेलेबल है, इंटरेस्टेड हैं, तो आप उन्हें बताइए, यू नो, वो हमें बताएंगे, एंड देन वी कैन प्लान समथिंग टुगेदर. ओके, ग्रेट. आई थिंक दैट्स अमेजिंग. So I think a lot of them are back. Bhomick, you want to share the slide? So guys, please take up your questions. You know, जो आपके questions हैं वो अपने दिमाग में डालिए, and please put them on the comment box so that, you know, we can pick up those questions, answer you directly, and that way it could be amazing. Okay. So Shahrukh asked a question: if you're applying for abroad universities and jobs, then should I keep my resume of 1 page or 2 page? Can you share some thought on that? Yeah, so I think that it's not a golden rule. It's not a thumb of rule कि एक पेज का ही होना चाहिए, Shahrukh. So I understand that there are situations wherein it can extend by 1 page, but then what I want is कि जिस तरह से आप जब किसी के सामने जाते हो तो सबसे पहले आपका चेहरा दिखता है, right? So similarly, resume का जो first page है उसके ऊपर main crux, main summary होनी चाहिए. ऐसी कोई इंफॉर्मेशन सेकंड पेज पे नहीं होनी चाहिए जो आप चाहते हो कि इंटरव्यूअर पढ़े और उसके लिए उसको वो पेज पलटना पड़े. दैट इज द ओनली आइडिया बिहाइंड इट. मैं और इंटरव्यू और टेम्पलेट्स भी बहुत सारे आ गए. आई थिंक रिज्यूमेस के बहुत सारे अमेजिंग टेम्पलेट्स आ गए आज की डेट में. यू कैन प्रॉब्ली लेवरेज दोस एज वेल. यू कैन फाइंड देम इजीली ऑन गूगल. तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट्स हैं, उनको लेवरेज करिए जिससे कि आपका जो रिज्यूमे है वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनता है. I think that's amazing. That's amazing. What about others, guys? Put in the comments. Comments डालो एक बार जल्दी की. Questions क्या हैं तुम्हारे? क्योंकि यार बहुत सारे लोगों को ये सेशंस नहीं मिलते हैं. मतलब अगर मेरे को कॉलेज में ऐसा मिलता होता तो आई थिंक मेरा इनिशियल जॉब्स में इंटरेस्टिंग हो जाता. But lot of folks don't get these sessions. So we have expert like Bhomick and myself. So I think let's take up the another question that we have here. How to have the spotlight during GDs without turning it into a debate. So Bhagishri, that I told you in the initial only. Debate में a lot of people have the general discussion का idea ये है कि वहाँ पर एक वहाँ मच्छी market बनना ही है, because you can't control how other people are speaking. But your goal is not to make it a group discussion. I'll be very frank with you on that.
ठीक है ना, वो वैसा ही होगा. देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल शाउटिंग दिस एंड दैट दिस एंड दैट. योर रोल इज टू प्ले in the whole game and show the interviewer that you have skills of managing a group. because आपकी कंपनीज में ऐसे डिस्कशंस नहीं होते हैं. अगर ऐसे होने लग गए तो फिर ऐसे कि भाई क्या लगता है बजट बढ़ाना चाहिए, तो 10 लोग बैठे हैं, बजट तो बढ़ के रहेगा, नहीं तो फिर देख लेंगे, तुम्हें तुम्हारी कार का पंचर कर दूंगा मैं, ऐसा है वैसा, ऐसे कोई नहीं करता. ठीक है. जनरल कंपनीज में जनरल डिस्कशंस में होता है, बट वहां पर वो क्राउड वैसा है और सब चीजें वैसी ही होनी है. हैविंग सेड दैट, आपको खेलना आना चाहिए. आई टोल्ड यू सम इंटरेस्टिंग टिप्स जो मैंने इनिशियल में बताया. अब उनको यूज कीजिए. उससे क्या होता है, आप बेसिकली अपने ब्राउनी पॉइंट्स बना सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे. जो 3 लोग सेलेक्ट होंगे उसमें से आप पक्का हो. ठीक है. प्लस स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है. स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है. ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड वन लिंक विद यू, आप वहां से बेसिकली पिक कर सकते हैं. And that way it would be amazing. Should we put our professional photo on the resume or CV? Bhomick, what are your thoughts? Depends. I mean, if there is a space around it, it's not too clumsy, put it. But then why do you want to put a photo, right? You can share your link in that. Mm-hmm. If you are sending it across on an email, you can put in the link. Or if you want the person, so this is a very good idea which I got for my book as well. I got that idea after I published my book, but then for next I'll be definitely doing it. What you can do is for a paper resume, right? If you are sending it across in a paper format, वहां पे जैसा ये QR कोड दिख रहा है आपको, अपने प्रोफाइल का, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का QR कोड डाल दो साइड में, so that अगर इंटरव्यूअर, this will be a unique thing. Now, no resume will be there which links directly to your LinkedIn profile or to your online profile, right? अब उसको आज के डेट में स्कैनर, QR कोड स्कैनर हर एक मोबाइल में होता है. इंटरव्यूअर अगर इंटरेस्टेड हुआ तो उसको क्लिक करके आपके ऑनलाइन प्रोफाइल भी देख सकता है, राइट? सो instead of a photo, do this. This is a brilliant idea. Great. One more thing I'll just add on, Gruti. So I usually also do this when I used to put in for jobs. कि यार देखो, पॉइंट इज कि दो चीजें हैं. जब आप बेसिकली वहां सीवी में जा रहे हो, तो अगर आप ऑनलाइन भेज रहे हो या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज देयर, तो आप उसको कुछ एक वैसे फोटो में डाल के डाल सकते हो कि यार यू कैन सेंड अ फोटोग्राफ. मतलब मेरा थॉट तो ये है कि आज के टाइम पर I know that you are not comfortable sharing it. Yeah, you have hesitations on that. But today's world is not about hiding. मतलब I know that people might use it differently या जो भी है, इस टाइप के थॉट्स होते हैं, पर दैट इज द पॉइंट ना. अगर हम आज इस चीज से छुप रहे हैं, कल किसी और चीज से छुपेंगे, सो हम लोग बेसिकली ना अवॉइड ही कर रहे होंगे चीजों को. सो एंड अवॉइड बेसिकली हम फिर कहीं ना कहीं, वो एक लो कॉन्फिडेंस वाली बात है. आज प्रियंका चोपड़ा अगर चीजों को देख रही है, तो नहीं, शायद उसने ऐसा नहीं किया होगा. ठीक है. या फिर और लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा कि अगर आप अपने आप को दुनिया से मतलब छुपाओगे, तो चीजें आपके साइड पे ऐसा होगी कि शायद आप में गलती है या समथिंग. वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली जाता है. तो आई वुड सजेस्ट कि इफ यू वांट टू पुट योर फोटो, डोंट पुट इट बिकॉज अदर पीपल आर पुटिंग इट. पुट इट बिकॉज यू फील इट इज राइट पुटिंग योर फोटोग्राफ ऑन द थिंग. और ऐसे ब्रांड निकल के आता है. मतलब जब आप फोटो डालते हो ना, भाई ये कौन है, ये गुरप्रीत सिंह है यार, अच्छा क्या बात कर रहे हो, ओके लेट अस सी व्हाट हैपेंस. सो आपके सीवी में एक जान आ जाती है. सो दैट इज व्हाट आई थिंक. प्लस अगर आप फिजिकल सीरीज लेके जाते हो, तो उसको नॉर्मल प्रिंट आउट, एक तो कलर प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना, इनकेस अगर आपके ऑफलाइन इंटरव्यूज होते हैं. एक तो कलर प्रिंट आउट निकलवाओ, और एक थोड़ा सा एक है ना बॉन्डेड पेपर आता है. मतलब जो एक नॉर्मल पेपर होता है विच इज लाइक जो आपका A4 साइज होता है, उसी में थोड़ा थिक पेपर आता है जो थोड़ा प्रीमियम होता है, बॉन्डेड पेपर बोलते हैं उसे. यू कैन टेक योर सीवी इन दैट एज वेल. तो जब आप उसके अंदर लेके जाते हैं, तो बंदे को थोड़ा सा अलग सीवी लिखता है, तो वो बंदा देखता भी है, उसको फील और वाइब्स अलग आने शुरू हो जाती है. सो दैट इज व्हाट इज सुपर इंटरेस्टिंग. दैट इज व्हाट आई हैव डन इन माय पास्ट, एंड आई हैव गॉट phenomenal results apart from the overall profile as well. Shubham has a question, Bhomick. So he says that how do we express ourselves or whatever I think in a day, in a life, because हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, और कर ही कुछ और देते हैं. And it makes other one misunderstand
on short how to be real and how to make one appreciate it too. यहाँ पे ना Yeah. बहुत सारी चीजें हैं. सबकॉन्शियसली अगर आप दूसरे इंसान को इम्प्रेस करना चाह रहे हो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी मिस हो जाएगी, राइट? और तब ये सिचुएशन आती है कि आप कुछ बोलना चाहते हो लेकिन आप बोल कुछ और देते हो क्योंकि आप उसको इम्प्रेस करना चाहते हो. whenever you are authentic, whenever you are at your authentic best, ये चीज कभी भी नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई भी मेरा मेरा कोई भी सेशन होता है, और ये आज की बात नहीं कर रहा, मैं शुरुआत से ही ये बात कर रहा हूँ कि मैंने एक बार स्लाइड्स बना ली, उसके बाद मैं स्टेज पे जाके वही बोलूंगा जो उस वक्त मेरे दिमाग में आ रहा है, राइट? सो उस वक्त ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ और सोच रहा हूँ और लेकिन मेरे को बच्चों को इम्प्रेस करना है. मेरे को इम्प्रेस करना, मेरा कोई फिल्टर नहीं लगा होता दिमाग में कि मेरे को सबको ना इम्प्रेस करना है. नो, इट्स लाइक कि मेरे को इनको वैल्यू देनी, और वैल्यू तभी आएगी जब आप खुद के साथ ऑथेंटिक होते हो. तो यहाँ पे टू आंसर योर क्वेश्चन, नंबर वन इज ऑथेंटिसिटी. कि डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट. और मैनिपुलेट को बैड सेंस में मत लेना, राइट और रॉन्ग दोनों, मतलब दोनों वेज में हम मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कभी कभी, एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोग खुद मैनिपुलेट हो जाते हैं उससे, राइट? दैट इज वन थिंग, ऑथेंटिसिटी. सेकंड इज प्रैक्टिस. दैट इफ यू रियली फील दैट देयर आर सम एरियाज जहां आपको लगता है कि यू एक्चुअली मेस्ड अप, ओके, आज कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें यू मेस्ड अप, राइट अबाउट इट. आप लिखो कि क्या सिचुएशन थी, आपने क्या किया और आप क्या कर सकते थे. ये चीज पर्सनली इसने मेरे को बहुत हेल्प किया है, ताकि कल को अगर दोबारा से सेम सिचुएशन आए ना, आई विल नॉट बिहेव इन द सेम वे, बिकॉज आई हैव दैट लर्निंग. और एक बार आपने उसको लिख लिया, उसको समझ लिया, वो यहाँ पे आ जाएगा. एक बार आपने उसको लिख लिया ना, आपकी मसल मेमोरी में चीज आ जाती है, दैट गेट्स इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. तो Awesome. डे टू डे बेसिस पे मैं तो कह रहा हूँ कि फेलियर्स हो, मैं तो कह रहा हूँ जितने फेलियर्स हो बहुत अच्छी बात है, बट उससे आपकी लर्निंग्स क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट इज ऑथेंटिसिटी, सेकंड इज प्रैक्टिस. Awesome. That's amazing. That's amazing. Great. I think that's great. Shahrukh has the question saying, if I join 10,000 speakers, how is it going to shape my skills? And is there a monthly membership or something of that sort? So Shahrukh, yeah, 10,000 speakers में होता क्या है ना? There are two things that we do. One is public speaking पे हम लोग ये सारी चीजें करते हैं, and then we have different products like practice talks, then we have English talks, then we have war of words and things like that. तो जो भी आपको सेंस लगता है, व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन जस्ट पिंग अस ऑन इंस्टाग्राम और वहां पर आप बात कर लीजिए, एंड वहां से जो जो आपको सेंस लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरे काम का है या समथिंग, सो वो आप वहां से पूछ लीजिए, दे विल बी हेल्पिंग यू विद दैट. Okay, awesome. So anybody has any other questions, please put down. And I think we are almost at the end of the session. ये guys जो screen पे आ रहा है इसका screenshot ले लो, scan कर लो, और फिर phone numbers भी दिए हैं. These are Bhomick sir का शायद number है यहाँ पे, and Right. राशि का number है which is 955 वाला. अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं. Also, I think आपके friends हैं आपके फ्रेंड्स अलग अलग कॉलेजेस में हैं, सो दिस इज अ वर्कशॉप दैट वी आर डूइंग, एंड वाज इट हेल्पफुल फॉर यू? प्लीज पुट इन द कमेंट्स, वाज इट हेल्पफुल फॉर यू? Yes, so I think a lot of you folks are saying it was very helpful. I think that's amazing. So एक ये चीज करना है, आई थिंक आपके अलग अलग दोस्त अलग अलग कॉलेजेस में हैं. So what you can do is that you can connect, you can tell this about this workshop to your friends, okay, so that more and more people को हम ये चीज deliver कर पाए. And राशि ने अपना नंबर डाला है, so I think you can get her connected to the placement committee or whatever the thing is, so that we can do this workshop with more people, and that would be amazing. Yeah. Great. So guys, do scan these codes. As I mentioned, that these are the Insta handles of 10,000 speakers on my YouTube channel, which is still growing, and I'll be putting across much more information regarding interviews in upcoming times. Also, I have just pinged my Insta link in the chat box, so you can connect with me there as well. Great. Now I'd like to invite Venkatesh over here, and you can take it from here, Venkatesh. Yep. Yes, sir. Thank you so much, sir.
Now I would like to present the thanking note on the behalf of Sydenham College and Sydenham Placement Cell. I would like to extend sincere gratitude towards the team of 10,000 speaker, Mr. Bhomick Sen and Mr. Abhishek Gulia for your wise words. And I would also like to thank Miss Rashi for her backend coordination for the workshop that we conducted today. During the workshop on the public speaking for placement held on online meeting in our college, your views on developing oneself perfect in their skills and the way to execute have broadened our horizon. The workshop was extremely helpful and we are sure it added value to all the students who have attended the session. Such workshops are important for us students who will be commencing their career in near future. Once again, would like to thank you for enlightening us with your expertise and wisdom. We hope to get a chance to conduct more educational webinar with you in near future and maintain a fruitful relationship with you all. I would also like to thank everyone who have attended today's webinar and a big thank to Principal of Sydenham College and Professor in charge for placement cell for giving us this opportunity to conduct this webinar. Thank you so much, sir. Thank you for being here. I think And that's amazing. That's amazing. Thank you, Venkatesh, for such a lovely thank you note. And guys, in the end, can we take another selfie? इससे ये हो जाएगा कि हम लोग सो तो नहीं रहे हैं probably. So we would love to see you guys again. But before that, let's take a quick selfie. I think we have awesome, amazing, smiling, lovely और कौन-कौन से adjectives से बहुत सारे interesting adjectives आए थे. I think that's amazing. Please switch on your cameras. Come on. I think super awesome लोगों से मिलने का मौका आ गया है. ठीक है. तो अमेजिंग सेशन रहा यार. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. इट वाज अ लॉन्ग सेशन. मतलब इतना लंबा चला सेशन. मतलब ऐसे डेड हो जाता था मैं अगर मैं कॉलेज में होता तो. बट आई थिंक वैल्यू आप लोगों को मिली है एंड आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी एट द कोर ऑफ द हार्ट क्योंकि आप लोग ही देश का फ्यूचर है. यू आर द गाइज हु विल बी ड्राइविंग इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल and making the change across the globe. And we are very happy that we were able to add value to you guys. ठीक है. Yeah. लास्ट में फेस टू फेस इसलिए बात करना चाहता था कि यार वर्चुअल वर्ल्ड है, चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा एक कनेक्ट बनता है तो मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ एक कुछ वैल्यू डिजर्व किया है. Great. I think that's amazing. Let's take a quick selfie and that would be amazing. You can just do this. This works. Whatever works for you. Okay, awesome. So I'll take a screenshot for this. Awesome. Great. ठीक है यार. I think that's amazing. And थोड़ा सा इस चीज को करो कि if you have friends अलग अलग colleges में हैं, उनसे बात करो about this workshop and if you think कि उनकी भी help हो सकती है something, do connect them to Rashi. Rashi ने phone number डाला है अपना so that we can do more and more these sessions across the country and we can make India more employable क्योंकि jobs बहुत हैं लेकिन लोग employable नहीं है and that is something which hurts me and that way it is amazing. Thank you Bhomick for joining us on this session and I thank Venkatesh also for making this session in an overall sense amazing. Okay. Absolutely. Thank you. That would be amazing. Thank you guys. Keep smiling, keep working on yourself, and I wish you all the success in your life. Thanks a Thank lot, you. everyone. Take care. Bye.